عزیزان گرامی وقار، ولادت باسعادت کے احوال ہمیں ذکر کرنے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت عام بچوں کی طرح ولادت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہان عالم میں، اس فرش گیتی میں جو تشریف لائے ہیں وہ ایک الگ شان ہے، بڑی عظیم شان کے ساتھ آپ تشریف لائے، عام بچوں کی طرح نہیں، بلکہ عرب میں اس زمانے میں کیا کیا ہوا تھا، آس پڑوس میں کیا کیا ہوا تھا، سب مجھے بتانا ہوگا۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب کائنات کے سب سے افضل انسان کو بھیج رہا ہے تو کائنات میں تبدیلی تو ہونا ہی ہوگی ہی، اس لیے کہ برسوں جن نبیوں نے اس رسول کے آنے کی بشارتیں سنائی ہوں، وہ رسول جب آ رہا ہو کیا ہوا جانتے ہیں؟ جس رات حضرت عبداللہ سے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہو کر بطن آمنہ میں آیا، اسی رات کو آوازیں آئیں۔ یہ روایات میں موجود ہے، امام زرقانی فرماتے ہیں مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو اطلاع دی، مبارک ہو نور مصطفیٰ اب اپنی اصلی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ رجب کے مہینے میں یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا، اسی دن بشارتیں شروع ہو گئی۔ اب اس کو ارحاسات کہتے ہیں۔ حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب حالات ہوئے، پورے عرب میں ہی نہیں بلکہ کائنات میں الگ الگ حالات ہونے لگ گئے۔ جانتے ہیں حضور کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ختم کرنے آیا تھا، ڈھانے آیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ سورہ فیل میں پڑھو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس پورے سورے میں اللہ نے فرمایا ابرہہ بادشاہ کی فوج کو اللہ نے ابابیل چڑیاں بھیج کر کنکریوں سے ہلاک کر دیا، پورے کے پورے تہس نہس ہو گئے۔ ابرہہ کی لاش نہیں ملی، سارے فوجی مر گئے، ہاتھی سکڑ گئے، ایسا ہو گئے تھے فجعلہم کعصف مأکول، ایسا اللہ نے ان کو ہلاک کیا تھا جیسے نوچ کھائی ہوئی مرغی، یعنی چھلی ہوئی مرغی جس طرح دکھے، اس طرح پوری فوج بن گئی تھی، سارے لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں رسول پاک کی جلوہ گری ہونے والی تھی۔ عرب میں حالات کیسے بدلے؟ موسم پورے سال کا بہت ہی خوشگوار۔ عرب پہلے قحط سالی سے جوجھ رہے ہوتے، زمینیں سوکھتی تھی، فصلیں نہیں آتی تھی، لیکن اس سال پورے عرب والے کہتے ہیں اتنی فصلیں آئی کہ ہم نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ موسم بہار، بارشیں، خوشگوار ہوائیں، اور پورے سال میں جو سب سے حسین مہینہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں ربیع الاول، سب سے حسین مہینہ۔ اس کو ربیع کیوں کہا جاتا ہے؟ عرب والوں نے اس کا نام رکھا، ربیع کہتے ہیں بہار کو، جو گلابی موسم ہوتا ہے، جس میں لوگوں کو اپنے سارے وسوسے، ٹینشن، فکریں ختم کرنے کا موقع ملے، سکون کی ہوائیں آتی، نہ زیادہ گرمی، نہ زیادہ ٹھنڈی، نہ بارش، جس کو آپ ساون کا مہینہ کہہ لیں۔ تو عرب میں جو پہلی بہار آتی تھی اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، سب سے پر بہار موسم۔ اسی موسم میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ربیع الاول عرب والوں کے لیے مشہور تھا کہ اس میں بہار کا موسم ہوتا ہے۔ اب سنیے پورے حالات کیسے تبدیل تھے، بڑے بڑے واقعات ہوئے میرے آقا کے آنے سے پہلے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے سنیں۔ رجب کے مہینے میں حمل قرار پایا، اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں، سنتے ہیں انہی کی زبان سے روایات۔ حضرت بی بی آمنہ بتائیں آپ کے شکم مبارک میں جب یہ نور مصطفیٰ آیا تو آپ کو کیسا لگنے لگا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اور عورتوں سے سنا تھا کہ حمل کے درد بہت ہوتے ہیں، لیکن جب میرا بیٹا میرے شکم میں آیا مجھے حمل کا کوئی درد نہیں تھا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ پیر بوجھل، نہ قے آنا، نہ سر چکرانا۔ دنیا کی ہر ماں کو حمل کے آثار پیش آتے ہیں، یہ تکلیفیں اٹھاتی ہیں، مگر کائنات کی ایک ماں نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔ کیوں اٹھائے؟ اس لیے کہ وہ غموں سے آزاد کرنے والا رسول اس کے شکم پاک میں ہے، ہر درد سے، ہر بے کسی کی فریاد رسی کرنے والا رسول اس کے شکم پاک میں ہے۔
बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जुबान मुबारक से हम रिवायात सुनते हैं। उससे पहले मशहूर मुहद्दिसीन ने जो रिवायात बयान किए हैं, फरमाते हैं कि ईरान में किसरा की हुकूमत थी। किसरा बादशाह इतना बड़ा सुपर पावर कि उसने एक महल बनाया था जिसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौज हुआ करती थी, और उसका दावा था कि इस किले को, इस महल को कोई भी टक्कर देकर गिरा नहीं सकता। बाज तारीखी रिवायात के मुताबिक जो आज मदियन सलमान पाक, जो इराक में एक शहर का नाम है, आज भी वहां वही किला मौजूद है। हम इराक जब जियारतों के लिए जाते हैं तो वो भी देख कर आते हैं। किसरा का महल उसे कहते हैं। आज अंदाजा करो 3000 साल से या 2000 साल से वो महल उसी तरह सलामत है। उस जमाने में कितना मजबूत रहा होगा, कितना पावर उसके अंदर रहा होगा। मजबूत, एक पिल्लर भी नहीं है, लेकिन छत आज भी खड़ी है। वो किसरा का महल था। और फिर मशहूर ईरान की एक आग थी जिस आग की पूजा की जाती थी, और बेशुमार लोग उसके सामने नजर मानते थे, इत्तिकाफ करते थे, चढ़ाई करते थे। और वो कब से जल रही थी? 1000 साल से जल रही थी। 1000 साल से उस आग को बुझने नहीं दिया था पंडितों ने। जहां वो थोड़ी सी धीमी हो जाए, तेल डाल दें या लकड़ियां भड़का दें, लेकिन उस आग को सुबह, दोपहर, शाम, रात किसी लम्हे बुझने नहीं दिया जाता था। वो आग जल रही थी 1000 साल से। किसरा का महल बड़ा कीमती, बड़ा मजबूत। और 2 नहरों के बारे में रिवायात में है। बुहैरे सावा एक इलाका है, काशान। काशान ये ईरान का इलाका है। वहां की झील, उसकी भी पूजा की जाती थी, उसको पवित्र माना जाता था। आग की पूजा करने वाले उस पानी की भी पूजा करते थे। इसी तरह समावा एक ऐसी झील थी जिसको सूख करके 300 साल हो गए थे, उसमें पानी का एक कतरा नहीं था। लेकिन मेरे अजीजों, जिस माह मुबारका में मेरे आका की विलादत होनी थी, अचानक हालात तब्दील थे। लोगों ने देखा बुहैरे सावा, जो झील पूजा की जाती थी, पुजारी दूसरे दिन सुबह जाकर देख रहे हैं पूरी झील में एक कतरा पानी का नहीं है, खुश्क हो चुकी है, सूख गई है, कुछ भी नहीं है। और समावा की झील जिसमें 300 साल से पानी का एक कतरा नहीं था, रात को लोगों ने देखा, सुबह आकर देख रहे हैं लबालब पानी भरा हुआ है। इतना पानी कि किसरा के महल्लात तक आ गया। और यही वो दिन था, अचानक ईरान की जमीन पर जलजले आ गए। ऐसे जलजले आए कि अचानक किसरा बादशाह के महल के अंदर एक शिगाफ पड़ गया, एक दरार आ गई। वो दरार आज भी मौजूद है, 14 सदियों से आज भी वो दरार दीवार में है। इतनी बड़ी दरार आई कि एक आदमी उसके अंदर से पास हो सकता है, गुजर सकता है, जिसका दावा था इसे कोई गिरा नहीं सकता। अचानक शिगाफ पड़ गया, दीवार में सुराख पड़ गया, और जो कंगोरे लटकाए जाते थे वो सोने के कंगोरे होते। महल के अंदर वो सारे के सारे जमीन पर नीचे गिर चुके थे, सब नीचे आ गए थे। और जितने बुत थे खाने काबा के अंदर और दीगर जगहों पर, दूसरे दिन देखा गया सब के सब औंधे मुंह गिरे हुए थे, सब नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। ये अलग अलग हालात। आसमान में अलग सी एक बदली छाई हुई थी जिसमें ठंडी आवाजें आ रही थी। और अलग अलग अरब वालों ने उस जमाने में, उस साल क्या क्या सुना। अरब वाले कहते हैं हमने जंगल का सफर किया, जानवरों को फसी अरबी में बोलते हुए सुना है। एक दूसरे को जानवर मरहबा मरहबा कह रहे हैं। हम ताज्जुब करते थे आखिर जानवरों को बोली कैसे आई है। ये अलग अलग वाकयात जो पेश आए। अब सुनो, किसरा का बादशाह जलजले की वजह से डर गया, सहम गया, बड़े बड़े काहिनों को बुलाया। ये क्या हो रहा है, पूरी कायनात में ये कैसी तब्दीली है। ईरान का बादशाह डरा हुआ है। कैसरे रोम, मुल्क रोम का बादशाह ख्वाब में देख रहा है अरब के लोग ईरान के और कैसरे रोम के ऊंटों को भगा कर ले जा रहे हैं। अरब के वहशी लोग, बद्दू लोग जो कुछ ज्यादा नहीं जानते, ईरान पर कैसे काबिज हो रहे हैं, रोम पर कैसे काबिज हो रहे हैं। भयानक ख्वाब था। काहिनों को बुलाया गया और ताबीर पूछी गई, ये क्या हो रहा है। जलजले आए, दीवार फट गई। आग जो 1000 साल से कभी नहीं बुझी थी आज अचानक गुल हो गई है। बहरे सावा सूख गया।
झील सूख गई, समावा में लबालब पानी आया। ये अनहोनियां हमें नहीं समझ में आ रही। सारे काहिन बैठे, जितने उस जमाने के ज्योतिष रहे होंगे, नुजूमी रहे होंगे, सबों ने कैलकुलेशन किया और बादशाहों से कहा, ए बादशाह सलामत, हमने अपने हिसाब से देखा है और हमारी ताबीर जो निशाना बताती है वो वही है जिसको हम शेर में कहते हैं, आई नहीं हुकूमत, आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। ताबीर एक ही लग रही है। बादशाह सलामत, तुम्हारे ख्वाब की भी ताबीर यही है। कंगोरे गिरे हैं, दीवार फटी है, झील सूखी है, आग बुझी है, सबकी ताबीर हमारे इल्म के मुताबिक तो यही लग रही है। अरब में आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। ये तो मैं शेर की जुबान में कह रहा हूं। उन नजूमियों ने कहा था बादशाह से, जरूर कायनात में कोई बच्चा पैदा हुआ है जिस बच्चे ने सारी सल्तनतों को हिलाना है। और बादशाहों को उसी दिन नजूमियों ने कहा था, आप खैर मनाओ, आप खैर मनाओ, तुम्हारी सल्तनतें जो 12 पुश्तों से चली हैं, ये 12 कंगोरे गिर गए। ये निशानी है कि अब तुम्हारी हुकूमतें लास्ट एंडिंग पर आ चुकी हैं, इख्तिताम पर आई हैं। बादशाह ने पूछा, क्या ये सुपर पावर खत्म हो जाएगा? जैसे अगर आज जाकर कोई अमेरिका से कहे कि तुम्हें एक छोटा मुल्क खत्म कर देगा, यहां बैठे हुए चंद मजमे आपको हिला देंगे, वो हंसेगा, बोलेगा, उनकी क्या ताकत है, हमारा इतना बड़ा निजाम है, क्या क्या हमने नहीं फैलाया है। किसरा ने भी यही कहा था, रोम के कैसर ने भी यही कहा था। हाँ, एक बच्चा पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ? अरब में पैदा हुआ, बद्दुओं के यहां, जो अरबी लोग हैं, देहाती लोग हैं, और हम पावरफुल, उस जमाने के पाश लोग, सबसे ज्यादा उनके पास माल, सबसे ज्यादा फौज, असलहे उनके पास। उन्होंने नजूमियों को कत्ल कर दिया, मार दिया। तुम लोग झूठी ताबीर बोलते हो। बादशाह की आदत यही है, उसकी तबीयत के मुताबिक तारीफ करो तो खुश होगा। उससे सिर्फ ये पूछो बादशाह से, आप आम कैसे खाते हैं, तो तारीफ करो, खुश होगा। हर बादशाह की आदत है। इंटरव्यू लो तो ये मत पूछो नोटबंदी क्यों किया था, मत पूछो, ये सब नहीं पूछना। जॉब कहां गई, वो मार डालेगा। तुम ताबीर, ज्योतिष भी सही नहीं हो, तुम ज्योतिष भी सही नहीं। हाँ, ज्योतिष ये कहे सारे भाग खुले हुए हैं आपके, सारा सीना चौड़ा हो गया है, देखिए उनको नवाजा जाएगा। किसरा और कैसर ने, ईरान की हुकूमत और रोम की हुकूमत ने भी बेचारे नजूमियों को मार डाला। उन्होंने क्या कहा था, एक बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारी सल्तनतें हिला देगा, तुम्हारी सल्तनतें हिला दे। हक को एक्सेप्ट करो, बात तुम्हें आज या कल माननी होगी। जो अल्लाह के फैसले हैं वो नाफिज होके रहेंगे। और रसूल के मुतालिक मेरे मौला ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। अल्लाह फरमाता है, हमने वो रसूल भेजा है, रसूल को हिदायत के साथ भेजा है, यूं ही नहीं भेजा कि तुम नारे लगाते रहो। अल्लाह फरमाया लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। अल्लाह फरमा रहा है, सारी कायनात पर मेरे रसूल के दीन को गालिब करने के लिए भेजा। वो रसूल का दीन गालिब आएगा आज या कल, क्योंकि अल्लाह का फरमान झूठा नहीं। फ्रांस में भी इस्लाम आएगा, अमेरिका में भी इस्लाम आएगा, यूरोप में भी इस्लाम आएगा। हाँ, जहां जहां मुनकिरीन होंगे इस्लाम गालिब आएगा। तुम्हें बुरा लगता हो अगरचे, और अल्लाह ने फरमाया, आगे पूरी आयत पढ़ता हूं, लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। हुजूर से पूछा गया ये गालिब कब होगा? हुजूर ने फरमाया, मेरी औलाद में एक मेरा बेटा आएगा जिसका नाम मोहम्मद मेहदी होगा। इमाम मेहदी आएंगे और उस जमाने में पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होगा, सिर्फ इस्लाम होगा। और अल्लाह ने जो फरमाया वो भी सुन लें, बिल्कुल सच। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे काफिरों को ये बात नापसंद आएगी, हाँ नापसंद आएगी, उनको बुरा लगेगा। अभी अगर मैं कहूं आरएसएस वाले भी मुसलमान हो जाएंगे, बुरा लगेगा, तकलीफ होगी उनको। हो सकता है जिसको भी हम कहें उसे तकलीफ हो, लेकिन मेरे अजीजों मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान ये कह रहा है अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। इस बात के कहने पर तुम मुझे मार डालोगे, कोई मसला नहीं। जिन्होंने अपने बादशाहों को ये बताया पहले, उनको मार दिया बादशाहों ने, लेकिन बाद में उनकी हुकूमतों ने देखा
कैसर और किसरा भी गिरफ्तार होकर गुलामान रसूल के कदमों में आ गए थे। और जानते हो इस शान से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के सिर्फ 2.5 साल बाद, 5 साल बाद समझ, वो जलाल आवर खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला जब मसनद खिलाफत पर जलवाबार हुए, अपनी फौज को किसरा के पास भी भेजा, रोम भी कैसर के पास भी भेजा, और दोनों जगह भी फतेह हुई। और ये गुलामान रसूल जिनको कैसर और किसरा क्या कह रहे थे, एक बच्चा पैदा हुआ हिला देगा, नजूमियों को मार डाला, और उसी रसूल के चंद गुलामों ने उनके तख्तों को हिला दिया, कुर्सियां हमेशा के लिए खत्म हुई। मुझे तारीख बताओ, ईरान और कैसर रोम जब ये खत्म हुए, आज 14 सदियां हो गई, दोबारा ना किसरा आया ना कैसर आया, नहीं आया। उनका खात्मा होना था, हो गया। अजीजा ने गिरामी वकार, इस शान से अल्लाह ने अपने हबीब के गुलामों को फतह दी। मस्जिद नबवी में माले गनीमत लेकर के आए और उसमें कालीन लेकर आए जिस पर किसरा बादशाह की कुर्सियां लगती थी। उस जमाने का महंगा कालीन जिस पर बैठ जाए तो लोग दुनिया में फख्र करते थे। मैं किसरा के कालीन पर बैठ कर आया हूं। जब किसरा का सब दरबार खत्म हुआ, माले गनीमत मदीना तैयबा साहबा ले आए, हजरत उमर से पूछा बहुत महंगा है दुनिया का, उस महल की सबसे कीमती चीज हम ले आए, इसको कहां सजाएं? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ले जाओ मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर रखो, हर आदमी पैर पोंछकर अंदर आए, पैर पोंछकर अंदर आए। इसलिए कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया को ये बताना चाहते थे, वो कैसर और वो कैसर रोम, वो किसरा ईरान, तुम जिस पर बैठकर फख्र करते थे, ये फख्र करने वाला काली गुलामान रसूल के तलवों के नीचे हुआ करता है। जब तुम इश्क मुस्तफा में कामिल होंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज उनकी कुर्सियां तुम्हारे जेर कदम आएंगी, हम भी देखेंगे, इंशाअल्लाह हम भी देखेंगे। अभी बहुत कुछ गुनगुनाया गया था जिससे लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। रब ने अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो हम भी देखेंगे, और इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह अज़ीज, हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम गालिब आएगा, वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून, अगरचे काफिर ना पसंद करें, अगरचे मुशरिक ना पसंद करें। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के साल ये बड़े बड़े वाकयात पेश आए। क्या क्या हुआ है? अरब के हालात बदले हुए थे, बुहैर सावा, बुहैर समावा, और उनके अलावा जो किसरा के बादशाह के कंगोरे टूट के गिरे और दरारें आई, आग बुझ गई। उसके अलावा आओ अब बीबी आमना के घर चलते हैं। अब ये विलादत की घड़ी के करीब के आसार में बता रहा हूं, निहायत ही अदब एहतराम के साथ सुनो, इसलिए कि मौलूद मुबारका को सुनना ये ईमान वालों के लिए सआदत की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले खुशबू की जाए और बखूर किया जाए, इतर लगाए जाएं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़किरे निहायत ही अदब एहतराम से किए जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अब सुने, हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही मेरे बतन पाक में मेरे बेटे का हमल करार पाया, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई आलाइश, कोई इस तरह की नापाकी हमने नहीं देखी। हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रजब का महीना गुजरा, शाबान का महीना आया, रात को मैंने एक मर्तबा देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हजरत बीबी आमना से कहते हैं, आमना मुबारक हो, तूने कायनात के पूरे आका को अपने बतन पाक में जगह दी है, तुझे सआदत वाला एक लड़का मिलेगा। उसके बाद हजरत बीबी आमना फरमाती हैं, रमजान का महीना आया, रमजान का महीना जैसे ही आया, हजरत बीबी आमना ने आवाजें सुनी, कहा गया आमिना को हर आलाइश से पाक कर दो, उसके अंदर मौजूद बच्चे को हर तरह के वसवसों से पाक कर दो। अब जब रमजान का महीना गुजरा, शव्वाल का महीना आया, हजरत बीबी आमना कहती हैं, शव्वाल के महीने में मैंने देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं और एक झंडा उठाए हुए हैं, और वह
अअलमहा बिरुतबति सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद बाला मर्तबे का कसीदा पढ़ा और बीबी आमिना को कहा मुबारक हो, मुबारक हो। ये शव्वाल का महीना गया, जिलकादा का महीना आया। हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं हर माह में मैं किसी नबी की जियारत करती और वह मुझे मुबारकबादी देते और मरहबा मरहबा कहते। जिलकादा गुजरा, जिलहज्जा आया, जिलहिज्जा गुजरा, मुहर्रम का महीना आया। इस हमले पाक को सफर के महीने में 8वां महीना लग चुका था। सफर का महीना ये बड़ा मुबारक महीना था। बीबी आमिना कहती हैं मेरे बतन पाक के 8 महीने के हमल में कभी मुझे बोझ नहीं महसूस हुआ, कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी ऐसा उठाया नहीं। बीबी आमिना फरमाती हैं सफर के महीने में जो चीजें मैंने देखी वो बहुत अजीबो गरीब थी। यहां तक कि मैं रात के वक्त अगर घर के ऊपर नजर करती तो बदलियां मुझे नजर आती और उसमें बात करने की आवाजें सुनाई देती। एक दूसरे को कोई मुबारकबादी देता था। मुझे मालूम नहीं था वो कौन सी मखलूक है जो बात करती है। पूरे सफर के महीने में हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं अजीबो गरीब बातें मैं आसमान पर होते हुए सुनती थी। कुर्बान जाओ मेरे असीसो, जिस माँ के पेट में हमारा आका जलवाबार है उस माँ की आंखें क्या क्या देख रही हैं। हजरत इब्राहिम को देख रही हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को और कायनात में होने वाले अजीबो गरीब लम्हात को देख रही हैं। अब सुनो, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद जगमगाया, हिलाले रबीउल अव्वल आया। बीबी आमिना फरमाती हैं अचानक मुझे हुराने जन्नत के तराने सुनाई देने लगे। वो गुनगुनाती थी, रात भर मुझे मीठे मीठे तराने सुनाई देते। बीबी आमिना फरमाती हैं रबीउल अव्वल की पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, ये दिन गुजरते गए, नबियों की बशारतें आई। यहां तक कि रबीउल अव्वल की 10वीं तक मैंने देखा जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए हैं और उन्होंने देखा, सारे मलाइका से कहा सफें बांध लो, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमिना फरमाती है मैं ये 2 रोज कबल से देख रही थी हुराने जन्नत के तराने। यहां तक कि 11वीं शब आई, 11वीं रबीउल अव्वल आई, उस दिन भी मैंने अजीब और गरीब बातें सुनी, अजीब और गरीब रोशनियां देखी। 12वीं शब आई, कहती है बीबी आमिना रब्बा तआला अन्हा मेरी पेशानी से अचानक एक नूर चमका, मेरे घर की दीवारों पर रोशनी हुई। यहां तक कि सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती है मैं मक्का में सोई हुई थी लेकिन बसरा के महल्लात को वहीं से देख रही थी। शाम के महल्लात को, मुल्के शाम के महल्लात को मैं उस नूर की रोशनी में देख रही थी। कुर्बान जाओ ऐ सुन्नियो, जिसके बतने पाक में हमारा आका है वो मक्का से बसरा तक देख सकती है, मक्का से शाम तक देख सकती है, तो वो रसूल क्या नहीं देख सकता? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बीबी आमिना फरमाती है 12वीं शब आई, मैंने देखा मेरी पेशानी से एक नूर जगमगाया, उससे बसरा के महल्लात रोशन हुए, मैंने शाम के महल्लात को देखा। अब यहां से मक्का से बसरा काफी 100 किलोमीटर है, शाम 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इतनी दूर तक बीबी आमिना देखती रही। रात के पहर गुजरते रहे, रात के लम्हात गुजरते रहे। वही रात है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। ये 12वीं शब थी। बीबी आमिना की कैसी शब रही होगी अंदाजा तो करो। हजरत आमिना फरमाती है मैंने आंख उठाकर देखा तो मुझे फरिश्तों की सफे नजर आई। जिब्राइल कह रहे हैं ऐ मलाइका सफे बांध लो, अल्लाह का नबी आ रहा है। सफे तरतीब दी जा रही हैं, सबके हाथों में मिशाले हैं। और अचानक बीबी आमिना फरमाती हैं 12वीं शब की आधी रात गुजरी होगी, हजरत जिब्राइल उतरते हुए दिखाई दिए। हजरत जिब्राइल आए, एक मशरिक में झंडा गाड़ा, एक मगरिब में झंडा गाड़ा, तीसरा काबे की छत पर झंडा गाड़ा, काबे की छत पे झंडा गाड़ा, रूहुल अमीन गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत। ये जिब्राइल अमीन ने बशारत दी। मोमिनो सुन्नियो झंडे लहराओ, इसलिए कि जिब्राइल अमीन की सुन्नत है। जिब्राइल अमीन ने 3 झंडे गाड़े, बामे काबा पर भी, मशरिक में भी, मगरिब में भी। मशरिक और मगरिब में क्यों गाड़ा? इसलिए कि बताने के लिए कायनात के इस आलम के आका की खुशियां मनाना मक्का वालों की ही सिर्फ
खुशकिस्मती नहीं, सिर्फ मदीने वालों के हिस्से में नहीं, मशरिक और मगरिब में बसने वाले सारी मखलूकात इन दो झंडों के बीच में रसूल की आमद की खुशियां मनाएगी। जिब्राइल अमीन खुशियां मना रहे हैं। बीबी आमना फरमाती हैं रात के आखिरी पहर थे, अचानक सुबह सादिक का वक्त तुलू हो रहा था। वही साअत, वही घड़ी जिसको इमाम आले सुन्नत ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, ये घड़ी दुनिया की सबसे अजीम घड़ी है, ये साअत दुनिया की सबसे मकबूल साअत है। मैं समझता हूं न शबे कद्र वहां को पहुंचती है, न शबे रमजान की ईद वहां पर पहुंच सकती है। कोई घड़ी उस घड़ी का मुकाबिल नहीं हो सकती जिस घड़ी में कायनात का आका व मौला जलवाबार हो रहा है। बीबी आमना फरमाती है सुबह सादिक हुई मेरे अजीजों और माओं को डिलीवरी के वक्त और विलादत के वक्त दर्द शुरू हो जाता है। दर्द सह जिसको कहते हैं, वो तड़पती हैं। लेकिन बीबी आमना फरमा रही है मैं ठंडक महसूस कर रही थी, खुशियां महसूस कर रही थी, पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक ही ठंडक थी। अचानक मेरे घर का दरवाजा बंद था। रात भर तो जन्नत की हूरों के तराने सुनती रही, फरिश्तों की सफों को देखती रही, लेकिन कहती हैं सुबह सादिक होने लगी तो मैंने अचानक मेरे घर में 3 औरतों को आते हुए देखा। वो औरतें बड़ी हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी और अजीब शान की थी। वो मेरे घर के अंदर आई, कोई मेरे दाएं खड़ी हो गई, एक बाएं खड़ी हो गई, एक सिरानी के पास खड़ी हो गई। मैंने पूछा या हज़रत आमिना फरमा रही है ए आने वाली खवातीन तुम कौन हो, इस तरह घर में कैसे आई हो? वो खवातीन कहती हैं ए आमिना न घबरा, हम तेरे आने वाले मौलूद की दाया बनकर आई हैं। हम कौन है तुझे बताती हैं। एक खातून ने कहा मेरा नाम सैयदा हव्वा है, मैं पूरी कायनात की माँ हूँ। दूसरी कहती है मेरा नाम सैयदा आसिया है जो जन्नत की पाकीज़ा खवातीन में से हो। तीसरी कहती है मेरा नाम सैयदा मरियम है जिसकी पाकी की कसम कुरान खाता है। ऐ मेरे अजीजों, ये 3 पाकीज़ा खवातीन बीबी आमिना के सिराने खड़ी हैं, विलादत बासआदत के वक्त दाया बनकर के आई हैं। क्या शान है आका तुम्हारी, क्या शान है आका तुम्हारी। हाँ, दुनिया में किसी को ये सआदत नहीं मिली होगी जिसको किसी अजनबी ने न छुआ। वो बीबी मरियम मेरे रसूल की दाया बनकर आई हैं, बीबी आसिया दाया बनकर आई हैं। अचानक मेरे सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं इन दायाओं से बातचीत हो रही थी, सुबह सादिक की घड़ी आई। अल्लाह अल्लाह, वो नूर खुदा, वो रहमत आलम, वो रसूल पाक जिसको कायनात के आका व मौला होने का शरफ अल्लाह ने अता किया, वो इस दारे व इस दुनिया गीती में जलवाबार हुआ। मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हुई, जब मैंने आंखें खोली हसीन गुलाब से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा है। वो नूर वाला तशरीफ ला चुका था, वो कायनात को जगमगाने वाला, वो आलम बाला का रसूल, वो आलम सुफला का रसूल, वो आलम जिन्नात का रसूल, वो आलम मलकूत का रसूल, वो आलम हैवानात का रसूल, वो 18,000 आलमों का रसूल बीबी आमिना के बतन पाक से जलवाबार हुआ। लेकिन किस शान से, अलग ऐसे आम बच्चों की तरह न समझो। बीबी आमिना फरमाती है मैंने नजर उठाकर देखा चांद से ज्यादा हसीन चेहरा है, न जिसमें पाक पर पेट की कोई गंदगी या आलाइश लगी हुई, कुछ नहीं, बल्कि वो नहा करके चमकते हुए बूंदों के साथ आया हुआ था। ऐसे तारे टपक रहे थे, तारों की तरह चेहरे पाक पर पानी के कतरे झिलमिला रहे थे। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नजर किया हजरत आमिना वो जो तस्वीर खींची है, सदा कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, कायनात के आका व मौला की तस्वीर, उनकी मां से ज्यादा हसीन कौन बता सकता है। हजरत आमिना कहती हैं मैंने अजीब गरीब बात देखी, मेरा शहजादा जब जलवागर हुआ आम बच्चों की तरह रोते चिल्लाते नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मैंने सुना उनकी जुबान पर था उम्मती 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 उम्मती। उसके बाद मैंने उनको सजदे के आलम में देखा। कौन है वो बच्चा जो पैदाइश के दिन अपने मौला के हाथ सजदा रेज है, पेशानी जमीन पर है, कायनात के आका व मौला एक दिन के हैं आज, लेकिन सजदे के आलम में हैं।
हजरत आमना फरमाती हैं जैसे ही ये 3 दायाओं ने उठाया, अल्लाह अल्लाह, बीबी आमना फरमाती हैं खुशी से मैं झूम गई, न दर्द था न तकलीफ थी, लेकिन इस हसीन गुलाब को देखने के बाद रूह में और एक खुशी और फरहत और इंबसात आ गया। उसके बाद कहती हैं मैंने नजर किया, नाफ कटी हुई थी, जब वो बच्चों की नाफ होती है, काटा जाता है 6 दिन के बाद, आप नाफ बुरीदा थे और मैंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए थे, मखतूम थे, और मैंने देखा, बीबी आमना फरमाती हैं रसूल पाक के चेहरे को आंखों में सुरमा पहले से लगा हुआ था, मखहूलन मदहूनुन मखतूमुन मलफूफुन बिथौबिन मिन अस्सौफिल अबयदी अलियनु मिनल हरीर अलियनु मिनल हरीर अबयदु मिन अस्सौफ। हजरत आमना फरमाती हैं अचानक मैंने देखा एक नरम लेशमी कपड़े में उन्हें लपेटा हुआ है, उनकी आंखें सुरमे की हैं, उनकी नाफ कटी हुई है, मखतून है, और मैंने जब उठाने की कोशिश की, मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबुएं आ रही थी। हमारे बच्चों को नहलाया जाता है, साबुन लगाया जाए, पाउडर लगाया जाए, बच्चों को खुशबू लगाई जाए तब महकेंगे, लेकिन कायनात का आका मौला मां के पेट से महकता हुआ आ रहा है। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अजीजा ने गिरामी, मां आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए झपकी थी, मैंने देखा 3 और लोग मेरे घर में आए, 3 और लोग आए, ये फरिश्ते थे, उनके एक के हाथ में तश्त था, तश्त जबरजद का था, एक मेटल है, खूबसूरत मेटल जन्नती तश्त लेकर आया है, दूसरे के हाथ में जग है पानी का, और तीसरे के हाथ में लिबास है, कपड़ा है, ये तीनों जन्नत से आए हुए मलाइका हैं। एक ने उठाया और उस तश्त में रखा, दूसरे ने वो पानी जो था निहायत ही खुशबू भरा उस तश्त पर रखा, और तीसरे ने वो मुलायम रेशम वाला लिबास उनके ऊपर डाल दिया। हजरत आमना कहती है अचानक ये तीनों गायब हो गए, मेरा बच्चा भी नहीं, ना वो 3 लोग, कोई नहीं दिखा। हजरत आमना कहती है मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, कायनात का इतना हसीन बच्चा मेरी गोद में, अचानक 3 लोग आए, सुबह सुबह, अभी अंधेरा अंधेरा है और तीनों लोग लेकर गायब हो चुके। कहां गया मेरा बच्चा, कहां गया मेरा बच्चा? मैं बेकरार थी, बेचैन थी। अचानक एक फरिश्ते की आवाज आई, आमिना घबराओ मत, आमिना बेचैन और बेकरार मत हो, इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उठाया है। कहां ले जा रहे हैं? कहते हैं फरिश्ते अब तेरे इस शहजादे को आलम आला में ले जाया जा रहा है, फरिश्तों को जियारत कराई जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, सारे फरिश्ते सफे बांध कर खड़े हैं, तेरे इस शहजादे की एक झलक के लिए, दीदार के लिए इश्तियाक में खड़े हैं। वो फरिश्ते लेकर गायब हो चुके थे। नूरे मुस्तफा अब जिसमें मुकद्दस में आया है, मेरे आका का जलवा देखने के लिए फरिश्तों के आलम में ले जाया गया। वहां ले जाकर के फरिश्तों ने क्या क्या दिखाया, आलम शर्क में, आलम गर्ब में, मशरिक में ले जाया गया, मगरिब में ले जाया गया, कायनात के जितने आलम थे सब में मेरे आका को ले जाया गया। जन्नत हो, लौह हो, कलम हो, अर्श हो, कुर्सी हो, हर जगह मेरे आका को जियारत कराई गई। वो कितने लम्हे थे वो अल्लाह बेहतर जाने, उसका महबूब बेहतर जाने। फरिश्तों ने सारी सैर कराई और वापस ला करके बीबी आमिना से कहा हक तो ये बनता था इस शहजादे का, इसलिए कि वो आया है हर आलम की रहमत बनकर, इसलिए अल्लाह ने हर आलम की सैर तेरे शहजादे को कराई है। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। सैयदा बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं जब ये तीनों मलाइका ने उठा करके मेरे शहजादे को पूरी कायनात की सैर कराई, वापस लाकर मेरे पास रखा, तो जिब्राइल अमीन ने मुनादी की, ऐलान किया, ऐ मलाइका खुशियां मनाओ, ऐ फरिश्तों खुशियां मनाओ, इसलिए कि अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो हबीब आया है जिस हबीब की हर सिफारिश पर मौला अपने जलाल को जमाल में तब्दील करेगा, अपने जलाल को जमाल में तब्दील करेगा। फरिश्ते जलाले खुदाबंदी से डरते थे, अल्लाह के जलाल से डरते थे, और उस दिन उन्होंने खुशियां मनाई। अब रब का जलाल अपने हबीब के जमाल में आ जाएगा। उम्मतियों हम क्यों ना खुशियां मनाएं, इसलिए कि हमें मौला ने पैदाइशी उस रसूल की उम्मत में बनाया है। इसीलिए तो हमारे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हमें यह अकीदा दिया है, हश्र
हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुनो बड़े ध्यान से कह रहा हूं, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए दुश्मन जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने ऐलान किया कि मेरे घर मौलूद मुबारक हो चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ में थे, दौड़ते हुए तशरीफ लाए और बीबी आमिना के घर में इस शहजादे मुबारका को उठाया, सीने से लगाया और सीधे खाने काबा के पास ले आए। जानते हो अब हमारे खड़े होने का वक्त आया है, इसलिए कि एक रिवायत यह है जिस दिन बीबी आमिना के घर में विलादत हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ कर रहे थे, किसका? खाने काबा का। ये सुबह सादिक की घड़ी है। कायनात में कोई मेरे मुस्तफा के मुतालिक सलाम करे न करे, सलाम के मुतालिक दलील पूछे न पूछे, ऐ सुन्नियों मैं तुम्हें बताऊं, उस दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अभी मेरे तवाफ के फेरे मुकम्मल नहीं हुए थे, मैंने खाने काबा की छत पर देखा, वो आमिना की घर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा था, खाने काबा झुक चुका था बीबी आमिना के घर की तरफ। तो सुन्नियों खड़े हो जाओ, क्यों ना हम अपने दिल उस बारगाह मुस्तफा में झुका। दीदाने गिरामी वकार, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसको हदीस जाबिर कहते हैं, मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़ाक में यह हदीस पाई गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से कहा, ऐ जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने मखलूकात में तेरे नबी के नूर को पैदा किया। हुजूर ने फरमाया कि सबसे पहले अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। वो रसूल का नूर कैसा था, क्या था, ये अल्लाह बेहतर जाने। हदीस पाक में ये मिलता है और मदारिजुन नबुवा में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इसकी 12 मंजिलें बताते हैं कि नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कैसे पैदा किया गया। कुछ भी नहीं था, आदम थे ना हव्वा थी, ना कायनात की कोई चीज, ना जन्नत दोज़ख लौह कलम अर्श कुर्सी, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह ताला फरमाता है कुन्तु कंज़न मख्फियन फअरदतु अन उअरफा फखलक़तुल खल्क़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह खुद फरमा रहा है, रसूल की जुबान है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमा रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फअरदतु अन उअरफ, तो मैंने ये इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं, मेरा तारुफ हो सबके सामने। फखलक़तुल खल्क़, फिर मैंने एक मखलूक पैदा किया, एक मखलूक, सबसे पहली मखलूक। अल खल्क़ से मुराद क्या है? वो नूर मुस्तफा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया। उसके बाद हुआ ये कि ये नूर कहां था, क्या कर रहा था। 9 लाख साल पहले की बात, आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 9 लाख साल पहले और बाज रिवायत में 5 लाख साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया। अब ये नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलम वहदानियत में अपने रब की मदह सराई करता रहा और ये नूर अपने रब की वहदानियत में रक्स करता। और उसके बाद 12,000 साल के बाद ये दूसरी मंजिल में आया, 12,000 साल के बाद तीसरी मंजिल में, यहां तक कि 12 मंजिलें ये इस नूर ने तय की। इसमें अलग अलग मंजिलें तय कराई गई, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का उसकी एक मंजिल थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफात को पहचानने वाली एक मंजिल थी, मारिफत की एक मंजिल थी, हकीकत की एक मंजिल थी। इस तरह की 12 मंजिलें तय की गई। उसके बाद अब हदीस सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नबी के नूर के 4 हिस्से किए, 4 हिस्से किए। अब ये 4 हिस्से जो हुए, एक हिस्से से अलग चीज बनाई गई, दूसरे हिस्से से अलग। जैसे हदीस में एक हिस्से से अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया, फिर अर्श को पैदा किया, फिर लौह को पैदा किया जिस पर सारे इंसानों की तकदीर लिखी गई, फिर कलम को पैदा किया, चौथा हिस्सा बाकी था, फिर उसमें 4 हिस्से किए गए। फिर उनमें से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हिस्से से सारे नबियों के नूर को पैदा किया, फिर मुत्तकीन को पैदा किया, मोमिनीन को पैदा किया, फिर जो बचा नूर का हिस्सा था फिर उसमें 4 हिस्से किए गए। उनमें से एक हिस्से से सूरज को पैदा किया गया,
चांद को पैदा किया गया, फिर एक हिस्से से सारे सितारों को पैदा किया गया, फिर जो चौथा हिस्सा था फिर उसमें 4 हिस्से हुए, उनमें से एक हिस्से से अल्लाह ने सारे सितारों को, सैयारों को पैदा किया, कायनात के अजायबात को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया। फिर चौथा जो हिस्सा था उनमें से 4 हिस्से फिर हुए, उनमें से एक हिस्से से सारे फरिश्तों को पैदा किया, फिर एक हिस्से से आसमान को, एक हिस्से से जमीन को। यहां तक कि यह हदीस बड़ी तवील है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान करते रहे। तेरे नबी के नूर के 4 हिस्से अल्लाह ने किए, पहले 3 हिस्सों से अलग अलग चीजें बनाई, चौथे हिस्से में फिर 4 हिस्से। ये करते हुए मेरे आका ने यहां तक बनाया कि कयामत तक होने वाली तमाम अशिया को अल्लाह ने तेरे नबी के नूर से पैदा किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर से सारी कायनात की हर चीज को पैदा किया। इसीलिए हम ये कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका जाने कायनात है, असले कायनात है, मकसदे कायनात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को इतनी मंजिलों से गुजारा। उसके बाद अब अंदाजा करें आप, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर के एक हिस्से से जो सूरज बना है, जो सितारे बने, जो चांद बने, उनमें इतनी रोशनी है कि पूरी कायनात को चमका रहे हैं। तो जिस नूर मुस्तफा में अल्लाह ने सरापा नूर रखा है, वो पूरी कायनात को कैसे नहीं जगमगा सकता है, कैसे नहीं रोशन कर सकता है। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरा कसीदा नूर मेरे आका की शान में लिखा है। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नूर का कसीदा आला हज़रत ने पूरा हुजूर के हर अज़ू को नूर कहा है। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ, कुरान की आयत है मेरे अजीजों। काफ हा या ऐन साथ, ये सूरह मरियम की शुरू की आयत है और इसको बाज मुहद्दिसीन ने कहा ये इसमें आजम है, इसमें आजम। इसकी तिलावत से अल्लाह हर दुआ कबूल करेगा। काफ हा या ऐन साथ, लेकिन आशिक रसूल जब जब पढ़ता है उसमें अपने नबी को ही देखता है। आला हज़रत यूं कहते हैं, काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ, यानी काफ जो लिखा रहता है उसकी शक्ल मेरे आका के गेसुए पाक की तरह है। हा जो है गोल होता है, दहन मुबारक चेहरे मुबारक की तरह है। या जो है लंबी होती है, हुजूर के अबरू की तरह दिखती है। ऐन और स्वाद गोल गोल होते हैं, मेरे आका की आंखों की तरह दिखते हैं। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद, तेरी सूरत में है उतरा सूरा नूर का। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक पर भी कुरान की आयतें आई हुई। अजीजा ने गिरामी वकार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो मंजिलें तय फरमाई, अब वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 9 लाख साल के बाद हो या 5 लाख साल के बाद हो, जब अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा करना चाहा तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश आपने इससे कबल भी सुना, जमीन की मुख्तलिफ मिट्टी ली गई और उसे गूंधा गया और उसके बाद उसमें रूह डाली गई। उनकी पेशानी में नूर मुस्तफा रखा गया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर की ये अमानत कहां मुंतकिल हुई? जबीन आदम में आई। बाज आशिकान रसूल तो ये भी कहते हैं अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया और सारे फरिश्तों से कहा उसजुदू li आदम, आदम को सजदा करो, तो उनको जो सजदा करने का हुक्म दिया गया था, असल वजह तो वो नूर मुस्तफा ही था। वो नूर मुस्तफा जो जबीन आदम में था, पेशानी आदम में जगमगा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम ने वो अमानत उठाई, संभाली, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर पाक को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। तो सिर्फ ये नहीं कि उन्हें मालूम भी नहीं था, बल्कि मैं आपको ये सफर मुबारक भी बता दूं जो हमारी आदत है। हम रसूल पाक का शजरे पाक भी तिलावत करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शजरे पाक की तासीर भी ये है, अल्लाह ताला उसके जरिए से जुबानों में सलासत अता करता है, रिज्क में बरकत देता है। इसलिए कि हमारे आपके दूसरों के नसब का तो छोड़ो, कायनात का जो सबसे अफजल व आला रसूल है
اس کے شجرہ نسب میں بڑی تاثیر ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, اس نور نے جو منزلیں طے کی, یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 لاکھ سال یا 9 لاکھ سال اپنے رب ذوالجلال کے جلو میں رہا. اللہ نے اس کے بعد اسی نور کے حصوں سے جنت بھی بنائی, لوح بھی بنایا, عرش بھی بنایا, کرسی بھی بنایا, قلم بھی بنایا, ساری چیزیں بنائی. اسی کو تو اقبال نے کہا ہے, لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. یعنی حدیث میں ہے نا, بعض حدیثوں میں یہ ہے, حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا, تختی. ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. پیدا کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا. ایک حدیث میں ہے قلم کو بنایا, اور ایک حدیث میں الگ تو پوچھا گیا کس کو پہلے بنایا, اور ایک حدیث میں تو حضور فرما رہے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا. یہ 3 الگ الگ چیزیں ہوئی. تو پہلے ہے کون؟ لوح کو پہلے پیدا کیا کہ قلم کو پہلے پیدا کیا یا نور مصطفیٰ کو؟ اقبال جیسا عاشق جو ہے یہاں پر ہمارے ذہنوں کو قریب کر کے سمجھاتا ہے. اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, کس کو پہلے پیدا کیا. اقبال کا شعر یہ کہتا ہے, یا رسول اللہ لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. جس کو اللہ نے پہلے پیدا کیا وہ شکل تو آپ ہی کی تھی. لوح سے مراد آپ ہی ہیں, قلم سے مراد آپ ہی ہیں, کتاب سے مراد بھی آپ ہی ہیں. لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے وجود میں حباب. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو منزلیں ہیں جبین آدم میں آئے, اب جب جنت سے اتر کر دنیا میں آئے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور لے کر کے ہی دنیا میں آئے. یہاں جب آئے 350 سال تک حضرت حوا سے الگ رہے, پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اللہ رب العزت نے دونوں کو ملایا, شوہر اور بیوی کو, جن کا نکاح جنت میں ہو چکا تھا. دنیا میں آنے کے بعد 350 سال تک مل نہیں سکے, لیکن عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی. اب اس کے بعد سلسلہ چلا. آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1000 سال کی ہوئی. کتنی؟ 1000 سال کی. بے شمار اولاد آپ کی ہوئی. آپ کا اولاد کا جو نسب کا سلسلہ تھا, اس لیے کہ دنیا کو ابھی وجود میں لایا گیا تھا, نسل انسانی کی ارتقا ہونی تھی. روزانہ آدم علیہ السلام کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی تھی. روز ان کی بیوی روز حاملہ ہوتی, روز بچے کی ولادت ہوتی. اس طرح آپ کی اولاد میں ایک ہونہار اور صالح فرزند پیدا ہوئے جن کا نام شیس رکھا گیا, وہ بھی نبی ہوئے. جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہلکا پن آیا, شیس کی پیشانی چمکنے لگی. حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر شیس کی پیشانی میں آ گیا ہے. حضرت شیس علیہ السلام کی جبین مبارک چمکتی تھی. میرے عزیزو, یہ چمک جو ہے حضور کے سارے آبا و اجداد میں پائی گئی. سارے حضور کے جتنے باپ آدم علیہ السلام تک آتے ہیں نسب میں, سب کی پیشانیاں چمکتی تھی. حضرت شیس علیہ السلام کو دیکھا آدم علیہ السلام, ان کی الگ سے تربیت کی, الگ سے ساری اولاد میں ان کو الگ مقام دیا. اور پھر یہ کہتے رہے, حضرت شیس علیہ السلام کا جو نکاح ہوا اس زمانے کی حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہی ان کے نکاح ہوتے تھے. بھائی بہن کے نکاح ہوتے تھے صرف ان کی شریعت میں, باقی کسی کی شریعت میں جائز نہیں, اس لیے کہ اس وقت انسان اتنے ہی تھے, ایک ہی باپ کی اولاد تھے. اپنی بیٹیوں میں جو سب سے پاکیزہ تھی آدم علیہ السلام نے ان کے ساتھ حضرت شیس کا نکاح کیا. شیس علیہ السلام کے نکاح کے بعد چند ہی دنوں کے بعد دیکھا گیا شیس علیہ السلام کی جبین مبارک سے وہ نور غائب نظر آ رہا ہے. انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ نور منتقل ہو چکا ہے. حضرت شیس علیہ السلام سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یانش میں آیا. یہ یانش حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑے تھے اور سب سے زیادہ پرہیزگار, اپنے باپ کے وفادار, اتنے اعلیٰ اخلاق تھے. ان کو دیکھ کر کے بھی شیس علیہ السلام نے تربیت کی, الگ سے ان کی تربیت کی اور بتایا کہ بیٹا تمہارے پاس اللہ نے ایک بہت بڑی امانت رکھی ہے, تم ادھر ادھر نظر نہیں کرو گے, تمہارا ہر عضو تمہارا ہر لمحہ پاک ہونا چاہیے, اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کی بہت بڑی امانت.
دیکھیں اس امانت کو ہر باپ نے محفوظ رکھا اور تربیت بھی ویسی کی. حضرت یانش کا جب نکاح ہوا وہ بھی اپنے اشرف خاندان میں، اعلیٰ خاندان میں. جب ان کے گھر ان کی دلہن آئی چند سالوں کے بعد حضرت یانش کی پیشانی مبارک سے بھی وہ نور غائب نظر آیا. انہوں نے محسوس کر لیا کہ نور منتقل ہو چکا ہے. یہ اس زمانے میں سب کو دکھتا بھی تھا، معلوم بھی ہوتا تھا. میاں سب کی پیشانیاں لوگ تو دیکھتے ہوں گے، لیکن ایک پیشانی اگر سورج سے زیادہ چمکنے لگے تو سب کو پتہ ہی چل جائے گا یہ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پاس کوئی خصوصیت تو ہے. اور جس کے پاس یہ نور ہوتا تھا، ہر زمانے کی بات یہ ہے، اس شخص سے شادی کرنے کے لیے ہر عورت بےتاب رہتی تھی. ہر عورت جو اس زمانے کی مخصوص عورتیں ہوتی وہ یہ نور کو دیکھتی اور پیغام نکاح بھیجتی. اور جس نصیب والی عورت کے حصے میں وہ آتا وہ دلہن بن کر کے آتی. حضرت یانش کے بعد ان کے بیٹے کینن تھے. کینن کی پیشانی پاک میں وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی یہ منزلیں ہیں جو سفر کر رہی ہیں. نور خدا چلتا ہوا آدم کی جبین میں، جبین آدم سے شیش کی جبین میں، جبین شیش سے یانش کی جبین میں، جبین یانش کی سے کینن کی جبین میں، اور یہاں کینن کی جبین سے پیشانی سے حضرت محلیل کی جبین پاک میں آیا. محلیل سے یرد میں، یرد سے ادریس میں، ادریس سے ادریس علیہ السلام کا نام متوشلخ بھی ہے. متوشلخ سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لامک میں آیا. لامک سے حضرت نوح علیہ السلام، جو حضرت نوح علیہ السلام اولاد آدم میں دوسرے رسول بھی ہیں. نوح علیہ السلام کی جبین مبارک خوب چمکتی رہی اور پھر یہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بیٹے سام میں آیا. سام سے یہ نور ارفخشد میں آیا. ارفخشد سے پھر شالخ میں آیا. شالخ سے پھر ایبر میں آیا. ایبر سے یہ نور فالخ میں آیا. فالخ سے یہ راؤ میں آیا. راؤ سے یہ ساروخ میں آیا. ساروخ سے یہ پھر ناحور میں آیا. ناحور سے پھر تارح میں. تارح سے پھر یہ جبین مصطفیٰ نور مصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں آیا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی مبارکہ خوب جگمگاتی رہی. آپ نے 2 شادیاں کی ہیں، سارا سے بھی ہاجرہ سے بھی. حضرت سارا سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے لیکن یہ نور منتقل نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے نکاح کیا سلام اللہ علیہا. حضرت ہاجرہ سے بیٹے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام. پھر یہ نور مصطفیٰ جبین اسماعیل میں آ گیا. اسماعیل علیہ السلام کا مشہور واقعہ تمہیں معلوم ہوگا. اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا جاؤ اپنے بیٹے کی قربانی کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے مینا کے مذبح خانے میں لائے اور ہاتھ پیر باندھ کر کے، کیا ان کی گردن پر چھری نہیں چلائی تھی؟ ہر بقرعید کو ہم یہ واقعہ سناتے ہیں. گردن پر چھری چلائی، نہ چلی. ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پر چلائی، پتھر ٹکڑے ہو گیا. پھر گردن پر چلائی، نہیں چلی. عشاق مصطفیٰ کہتے ہیں کیسے چلے گی؟ جبین اسماعیل میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا. نور مصطفیٰ امانت کے طور پر اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں ابھی موجود تھا. اسے کائنات میں فرش گیتی میں آنا تھا. اب سنو اور اس نور مصطفیٰ کی منزلیں، اس کا سفر اللہ رب العزت نے پاک اسلاب میں رکھا، پاک پشتوں میں رکھا، پاک ماؤں کے رحم میں رکھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نابت میں آیا. نابت سے یشجب میں آیا. یشجب سے تیرح میں آیا. تیرح سے ناحور میں آیا. ناحور سے مقوم میں آیا. مقوم سے عدد میں آیا. عدد سے عدنان میں آیا. عدنان سے پھر معد میں آیا. معد سے نزار میں آیا. یہ سب میں میرے رسول پاک کے آبا و اجداد کے نام پڑھ رہا ہوں. ہر نام پر آپ رضی اللہ عنہ کہیں، علیہ السلام کہیں، اللہ ان پر سلامتی بھیجے. اب میں نے سنایا عدنان تک یہ نور مصطفیٰ منزلیں طے کرتا ہوا تشریف لایا. عدنان سے پھر ماد میں، ماد سے نزار میں، نزار سے مدر میں، مدر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے نظر میں، نظر سے مالک میں، مالک سے فہر میں جن کو قریش کہا جاتا ہے، قریش سے غالب میں، غالب سے
लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से खिलाब में, खिलाब से कुसई में, कुसई से अब्दे मुनाफ में ये नूर आया, अब्दे मुनाफ से ये नूर मुस्तफा मुंतकिल होते हुए सैयदना हाशिम की जबीन पाक में आया, सैयदना हाशिम से मुंतकिल होते हुए मुस्तफा का नूर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये मुंतकिल होकर आपके फर्जंद अर्जुमन सैयदना अब्दुल्लाह की पेशानी में आया, सैयदना अब्दुल्लाह की जबीन मुबारका से ये नूर मुंतकिल होकर के रजब के महीने में बीबी आमिना के शिकमे मुबारका में आया, सैयदा बीबी आमिना के शिकमे मुबारका रजब के महीने में ये नूर मुस्तफा मुंतकिल हुआ। 9 माह उनकी मां को सादतें बख्शता रहा, 9 माह उनकी मां को उरूज बख्शता रहा, ना कोई दर्द, ना कोई कर्ब, ना कोई फिक्र, बीबी आमिना को हर तरह के दर्दों से आजादी थी, बल्कि उन्हें कभी बोझ भी महसूस नहीं हुआ। ये नूर मुस्तफा बीबी आमिना के बतन से 12 रबीउल अव्वल को इस फर्श गीती पे जलवागार हुआ। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मैं नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये मंजिलें आपसे अर्ज कर रहा था कि आपका शजर नसब बड़ी बरकतों वाला है, क्योंकि कुरान कह रहा है व तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन। ऐ रसूल, हमने आपके नूर को, आपके नुतफे को हमेशा सजदा करने वालों में रखा है, सजदा करने वालों में रसूल पाक के नूर को रखा गया। अब ये जालिम कहते हैं बीबी आमिना और हजरत अब्दुल्ला काफिर थे, मुअज़्ज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे रसूल के बाप, मेरे रसूल की मां, उनके लिए ऐसे नाजेबा कलमात ना इस्तेमाल करो। ए मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नसब पर अगर तुम एतराज करो, और एक एतराज करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आजर थे, कुरान में आया है आजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम नहीं, वो उनका चाचा था जो काफिर था, बुत परस्त था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुह था, जो किताबों में मौजूद है, सही किताबों में। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्लाह तक जितनी भी पुश्तें आई, जितनी भी पीढ़ियां आई, इनमें एक भी काफिर नहीं था, एक भी मुशरिक नहीं था। अपने अपने जमाने में या तो वो अपने नबियों के, अपने रसूलों के जमाने में उनके उम्मती बनकर मोमिन रहे, या अगर नबी का जमाना नहीं था तो जमाने फतरत में वो मुआहिद बनकर रहे, यानी एक खुदा की इबादत करते हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के दादा, मुझे पूरी तारीख छान मार के बताओ, 360 बुत तो काबे के पास थे, क्या हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कभी किसी बुत की पूजा की है? मैं उनसे पूछता हूं जो रसूल पाक के वालिदैन को बुत परस्त या काफिर कहें, मैं उनसे पूछूं, अरे हजरत उस्मान के सीरत में यह मिलता है कि जिंदगी भर उन्होंने बुतों की परस्तिश नहीं की। हजरत अबू बकर की सीरत में मिलता है, यानी ईमान लाने से पहले भी उन्होंने कभी बुतों को सजदा नहीं किया था। जो नफ्स शरीफ थे पैदाइशी, वो बुतों की पूजा नहीं करते थे, आइडियल वर्शिप नहीं। आज भी जो सलीमुत्तबा लोग हैं वो आइडल वर्शिप, यानी बुतों की इबादत को वो नहीं तस्लीम करते। खुदा एक है जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिनको हमने अपने हाथों से पैदा किया, वो खुदा नहीं हो सकते, वो मखलूक है। तो क्या वो उसे चाहिए कि वो जिसको तुमने बुत बनाया है वो तुमको खुदा कहने लग जाए कि मुझे तो इसने बनाया है? उल्टा तुम कह रहे हो। बहरहाल हमारा खालिक सिर्फ अल्लाह है। अजीजान गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में कोई मुशरिक और काफिर नहीं था। अब ये मसला मैंने आपको बताया। दोनों के मुतालिक, हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना के मुतालिक थोड़ी सी और बातें मैं बता दूं, वो ईमान लाए थे कि नहीं। इस पर 3 जमातें उलमा की, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरी किताब लिखी है इस पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोमिन थे और जन्नत में। उन्होंने साबित किया, 3 तरीकों से उलमा साबित करते हैं। पहला तरीका तो यह है कि इनकी वफात हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले हो गई। हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान किया 40 साल की उम्र। हजरत आमिना की वफात हुजूर के 6 साल उम्र में ही हो गई। हजरत अब्दुल्ला जो हुजूर के वालिद हैं, हुजूर की पैदाइश से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके। तो जब हुजूर की नबूवत का ऐलान ही नहीं हुआ था, उससे पहले वो दोनों इंतकाल कर गए। तो इस जमाने में जितने लोग इंतकाल किए, अगर उन्होंने बुतों की पूजा नहीं की तो उनको भी मोमिन मुआहिद कहा जाता है। एक खुदा को मानते थे। हम अपने रसूल के बाप और मां को मुआहिद
اور مومن تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ حضور کی اعلان نبوت سے پہلے آئے تھے اور انتقال کی. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں آخری حج تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جیرانہ کے بعد حجون، مقام حجون مکہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں حضور غمگین تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو اتر رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب سے یوں عرض کیا کہ اے مولا میری ماں اور میرے باپ کس حال میں ہیں؟ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش پر ان کی ماں اور ان کے باپ دونوں کو قبروں سے زندہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ماں کو بھی میں نے دیکھا، میرے باپ کو بھی میں نے دیکھا، اور ان پر میں نے ایمان پیش کیا تو وہ ایمان بھی قبول کی، وہ ایمان لائے اور اللہ رب العزت نے ان کو واپس قبروں میں بھیجا. اب یہ عقلی طور پر محال بھی نہیں، ناممکن بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں اس طرح کی بہت ساری باتیں آئی. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ قاتل کا پتہ معلوم کرنے کے لیے مقتول کو ایک گائے کی پونچھ سے مارا گیا، وہ زندہ ہوا، اور اس کو کس نے قتل کیا تھا وہ بتایا اور پھر مرا. سورہ بقرہ پوری اس میں موجود ہے. یعنی مردے کا زندہ ہونا، بات کرنا عقلی طور پر ممکن ہے، قرآن سے ثابت ہے. تو جب قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیے ہیں ثبوت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مردہ زندہ ہوا ثبوت ہے، حضور پاک کا معجزہ تو سارے نبیوں میں افضل معجزہ تھا. اللہ نے ان کو ان کے والدین زندہ کر کے دیے اور وہ ایمان لائے اور پھر وفات پائے. یہ بھی دو دلیلیں یاد رکھیں. پہلی چیز تو یہ وہ زمانہ فطرت میں تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے ان کے والدین زندہ فرمائے. اب آگو عزت کا خصوصی بندہ، اس کا حبیب، اس کا محبوب ابھی یہ جلوہ دیکھ کر آیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے ان کی آنکھوں میں سمائے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ انہی جلووں کو ان آنکھوں سے دیکھ لو، پھر بھیجتے کہ تازہ پھر دیکھ کر کے آئیں گے، پھر میرے مولا کے جلوے ان کی آنکھوں میں دیکھنے کو ملیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کس نے یہ دیکھا؟ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو منع نہیں کیا، بلکہ بار بار جاتے رہے، اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار بار بار ہوتا رہا. اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا ایک ہی ساتھ کم کر دیا جائے، اس لیے کہ میرا حبیب بار بار آتا رہے. یہ نمازوں کے کم کرانے کا سلسلہ تو تھا، لیکن ایک دوسرے کی محبت کا بھی معاملہ تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو جلوہ کوہ طور پر براہ راست نہ دیکھ سکے، لیکن دیکھے تو کس کے ذریعے سے دیکھے؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے ذریعے سے دیکھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو، میں کہتا ہوں ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہر نبی کو رہی ہے میرے مصطفیٰ کی حاجت، ہر نبی کو رہی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاجت. اور یہ بات آپ سنیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ. اذهبوا الی غیری ہر نبی کہے گا، اور سارے کہیں گے ایک ہی ہے جو آج سفارش کر سکتا ہے، تمہاری بھی کرے گا اور ہماری بھی کرے گا. وہ نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. عزیزان گرامی وقات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت پاک. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، لیکن اپنے نبی کو کیا بنایا؟ حبیب بنایا. اللہ کے رسول کیا ہیں؟ حبیب ہیں. اور ان کے بعد اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صبر کو لیں، شکر کو لیں، آپ کے تمام جلال موسوی کو، جمال عیسوی کو، حسن یوسفی کو لیں، سب چیزوں میں ایک نرالی شان دکھتی ہے. حسن کی بات آئی ہے تو عرض کروں، یوسف علیہ السلام کو حسن جو ہے معجزے میں ملا تھا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، عام انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے. یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، سوچتے تھے کیا انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا حسین. لوگ آج فلمیں بنا کر کے ان کا کیریکٹر دکھا رہے ہیں، تم کہاں سے یوسف کا ثانی لا سکو گے؟ نہیں پیدا کر سکو گے. بلکہ ان کے زمانے کے لوگ تو یہ کہتے تھے ہمیں تو یہ لگتا ہے فرشتہ ہے، بعض تو کہتے تھے کہ فرشتہ ہے، انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن جو ان کو ملا تھا، جمال، وہ معجزہ تھا، معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا حسن. اور بڑے واقعات ہیں قرآن پاک میں، پورا سورہ یوسف ہے. ان کے جمال پر کون کون فریفتہ نہیں تھا؟ ان کے جمال ہی نے، ان کے حسن ہی نے ان کو کنویں تک پہنچایا.
कुएं से फिर जुलेखा के घर में पहुंचाया, बाजार मिस्र में, मिस्र के बाजार से जुलेखा के घर में, जुलेखा के घर से जेल में, जेल से फिर वजारत उज़्मा की कुर्सी में। यह हुस्न उनको इतनी मंजिलें तय कराता रहा, क्योंकि हुस्न जमाल उनका था, लेकिन हासिदीन बढ़ते गए। एक बात याद रखना, कोढ़ी से कोई हसद नहीं करता, कोढ़ी से कोई हसद नहीं करता, हुस्न वाले से ही हसद करता है। अगर तुम्हारा कोई हासिद है तो शुक्र करो अल्लाह की बारगाह में, कोई तो नेमत है मेरे अंदर इसलिए हसद कर रहा है। कोढ़ वाले से कौन हसद करेगा? जो खोड़ पुटका होता है उससे हसद नहीं किया जाता, हुस्न वाले से हसद होता है। जिसके पास कोई दौलत हो उससे हसद होता है। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम इसके शिकार होते रहे, लेकिन उनके हुस्न के मुतालिक कुरान का मशहूर वाकया, जुलेखा बहुत फरेफ्ता थी, वारफ्ता थी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। औरतें ताना देने लगी कि यूसुफ जवान है, जुलेखा शादीशुदा औरत है, शादीशुदा होने के बावजूद एक नौजवान के हुस्न के चक्कर में पड़ गई। इन तमाम तानों को सुन करके जुलेखा ने एक दावत की थी। दावत में शहर की अमीर औरतों को बुलाया था, सबके हाथों में एक लीमू और एक छुरी दी थी, कहा मैं जब कहूं तब ये काट देना। यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजा संवार करके उसने उस कमरे में बुलाया। जब वो आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में जैसे दाखिल हुए, जुलेखा ने कहा ऐ औरतों, ऐ बीबियों, अपने लीमू काट दो। औरतें वो उसने यूसुफ को पहली बार देख रही थी, पहली बार देख रही थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल देखने में ऐसे मां हो गई, गर्क हो गई, डूब गई कि लीमू छूट गया, उंगलियां कट गई, उंगलियां, चारों उंगलियां कट गई, तेज चाकूदीर होगी, सब कट गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब चले गए तब उन्हें लगा अरे उंगलियां कट गई। मुझे बताओ, ये वाकया आपने सुना था ना? कुरान का वाकया है, सूरह यूसुफ 12वें पारे में ये मौजूद है, जाकर पढ़ लेना। ये हुस्न यूसुफ है। लेकिन आओ हुस्न मुस्तफा के दरबार में, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाल क्या था? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाल के मुतालिक खुद मेरे आका फरमाते हैं, इन्न अखी यूसुफ अस्बहु व अना मलीहुन। यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायत ही गोरे रंग के थे। मेरे आका की जुबान से पहले सुनते हैं ना हुजूर का हुस्न कैसा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम, हुजूर खुद फरमाते हैं मेरे भाई यूसुफ, क्योंकि सारे नबी आपस में भाई। हुजूर फरमाते हैं मेरे भाई यूसुफ उजली रंगत के थे और अल्लाह ने मुझे गुलाबी रंगत अता की है। उजली रंगत और गुलाबी रंगत में थोड़ा फर्क है। उजली रंगत जैसे जाहिर सी बात है, सूरज जब दोपहर के वक्त आ जाए हर कोई उस पर निगाहें टिकाकर नहीं रख सकता, देख नहीं सकता, है तो बहुत उजला, लेकिन देखने की ताब सबकी नहीं होती। लेकिन वही रात की ठंडी वक्त जब चांद तुलू होता है, चांद की भी रोशनी सफेद है, लेकिन ठंडक इतनी है कि उस पर निगाहें बांध कर देखी जा सकती। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का अंदाज था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे कोई तो उनके आंखों को हो सकता है एक बार उनका हुस्न खीरा कर जाए, लेकिन मेरे आका को देखने वाले की हालत ये होती कि वो निगाहें बंद करना भूल जाता, देखता ही रहता, देखता ही रहता, देखता ही रहता। यहां तक कि उम्मे माबद के मुतालिक आपने सुना होगा, मदीने के रास्ते में रहने वाली एक खातून, वो हर गुजरने वाले की जियाफत करती थी। उस रास्ते से जो भी गुजरता था उसको अपने घर से खाना खिलाती थी, दूध पिलाती थी। उम्मे माबद, ये मक्का से मदीने के बीच में जो रास्ता है वहां घर था उम्मे माबद का। हिजरत का जब मौका था मेरे आका का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर उसी रास्ते से गुजर रहे, रात का वक्त था, उम्मे माबद का घर आया। हजरत अबू बकर ने कहा आका ये बड़ी मेहमान नवाज औरत है, बहुत अच्छी जियाफत करती है, एक रात यहां रुक जाते हैं। अल्लाह के नबी वहां रुक गए। उम्मे माबद ने देखा मेहमान आए, इत्तेफाक ऐसा, उम्मे माबद कहती है मेरी जिंदगी में पहली रात ऐसी आई थी जब मेरे घर में दूध का एक कतरा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो बकरियां थी वो उनके शौहर चराने के लिए ले गए थे, नहीं लाए, 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद आती थी। आज ऐसा था कि एक बूढ़ी बकरी जो हड्डियां निकाली हुई थी और पेट अंदर जा चुका था, थन सूख चुके थे, वो चौखट के पास बंधी हुई थी। उम्मे माबद ने इस्तकबाल तो किया, आ जाओ कयाम करो, लेकिन खाने के लिए मेरे घर में कुछ भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उम्मे माबद, अगर तुम इजाजत दे दो
तो ये घर के बाहर बंधी हुई बकरी से मैं थोड़ा सा दूध दोह लूं, दूध निकाल लूं। उम्मे माबद ने कहा अगर ये दूध देने के लायक होती तो मेरे घर में क्यों रहती, दूसरी बकरियों के साथ चरने के लिए जा चुकी होती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम हमें इजाजत दे दो, बकरियों का दूध निकालना हमारा काम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उसने कहा अगर कतरा दो कतरा मिल जाए तो निकाल लो, अगर कतरा दो कतरे मिल जाए तो दोह लो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस बकरी की पुश्त पर अपना बायां हाथ रखा, सीधा हाथ उसकी थन पर रखा। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मेरी आंखों में अचानक ये मौजज़ा दिखा कि बकरी सेहत और तंदुरुस्त हो गई, तवाना हो गई, उसके थन दूध से भर गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूध दोहते रहे, निकालते रहे, प्याले भरते रहे। उम्मे माबद के घर में जितने प्याले थे सब दूध से भर गए। और उस दिन उम्मे माबद कहती है मेरी सारी बकरियां मिलकर जो दूध नहीं देती थी, मेरी कमजोर बूढ़ी बकरी ने उतना दूध एक रात में दिया था। वो दूध खुद भी पिया, सारों को पिलाया। बल्कि उम्मे माबद कहती हैं मैंने अपने मोहल्ले के सारे लोगों को दूध भेजा, फिर भी मेरे घर में बचा रहा। ये रात का क़याम था मेरे आका का। दूसरी सुबह हुई, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने आगे के सफर पर रवाना हो गए। लेकिन उम्मे माबद का दीवानापन अब यहां उरूज पर आया। अब ये वरेफ्ता हो चुकी थी। एक रात का क़याम था मेरे आका का। शोहर आए, शोहर उम्मे माबद के आए, कहा है उम्मे माबद घर में भीनी भीनी खुशबू कहां से आ रही है, ये हल्की हल्की रोशनी कहां से आ रही है, घर में कुछ तो बदला बदला सा दिख रहा है। उम्मे माबद ने कहा क्यों ना बदला बदला दिखे, कल रात एक अजीब सा मेहमान हमारे घर आया था, बहुत अजीम मेहमान था। अब जो मुझे अर्ज करना है वो उम्मे माबद के अल्फाज हैं। पूछा कौन आया था? इत्तेफाक की बात है उम्मे माबद ने हुजूर का नाम ही नहीं पूछा था। कौन है आप ये पूछा ही नहीं था। वो सबसे पूछती थी लेकिन हुजूर से पूछा ही नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त बड़ी शर्मिंदा थी कि घर में कुछ नहीं है। उसने थोड़ी देर सोचा और अपने से ही नाम खुद बना लिया। अपने शौहर से कहा कल रात जो आया था उसका नाम मुबारक था, कल जो आया था उसका नाम मुबारक था। अरबी में कहते हैं बरकत देने वाले को मुबारक। अपने से नाम रख लिया। कहा अच्छा मुबारक आया था। शौहर ने कहा मुबारक कैसा था? उम्मे माबद ने कहा बस ना पूछो कैसा था, दूर से देखो तो ऐसा लगता है करीब है, करीब से देखो तो ऐसा लगता है कि हुस्न का सारा निजाम इसी चेहरे में जमा है। और जब वो बात करे तो उनके जुबान से मुश्क अंबर की खुशबू आए, जब वो मुस्कुराए तो दांतों से ऐसी रोशनी के घर में उजाला हो जाए, जब वो पानी पिए तो ऐसा लगे कि पानी उतरता हुआ गले से नजर आए, और अपने हाथ किसी से मिलाए तो ऐसे लगे जैसे रेशम का कपड़ा किसी में रखा गया हो। उनके हर अज़ू को, उनके जिस्म को, उनके जमाल को वो बयान करती रही। मेरे पास अल्फाज नहीं है मेरे अजीजों, उम्मे माबद की हदीस पढ़ो आंखें भीग जाती हैं। मेरे नबी का जमाल वो बयान करती रही। अब अबू माबद जो शौहर है वो कहते हैं बस कर उम्मे माबद, इतनी तारीफ तो आज तक मैंने पूरे अरब में किसी की नहीं सुनी। शेरो शायरी करने वाले भी इतनी तारीफ नहीं करते जितनी तारीफ तू कर रही है। अब उम्मे माबद से कहा अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि उस मुबारक से एक बार जरूर मिलूंगा, उस मुबारक से एक बार जरूर मिलूंगा। कहा उस मुबारक का ना मैंने पता पूछा ना एड्रेस पूछा, वो कहां से आया था कहां गया ये भी मुझे नहीं मालूम। ये दो लोग ऐसे हैं मेरे अजीजों, ये उम्मे माबद जो हुस्न जमाल को मेरे आका का बता रही हैं। हुस्न यूसुफ अलग है, हुस्न मुस्तफा अलग है। मैं यहाँ हुस्न की बात कर रही हूँ। इसी हुस्न को तलाश करते करते वो जिंदगी बीता गई। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, ए बारे इलाहा जो मुबारक आया था उस तक एक बार मुझे रसाई दे दे, किसी भी तरह पहुंचा दे। एक बार ऐसा हुआ कि वो बकरियां चराते हुए निकली, बकरियां बहक गई, भटक गई, एक बकरी इधर एक बकरी उधर, चलती चलती बकरियां दौड़ा रही उम्मे माबद को। ये बकरियां दौड़ाती दौड़ाती मदीने तक ले आई, शहर करीब आ गया। अब उम्मे माबद रोने लगी कि अगर शहर में घुस गई, मेरी बकरियां दाखिल हो गई तो छोटी छोटी गलियां हैं, मैं कहां से पकड़ पाऊंगी, किस बकरी को ढूंढ पाऊंगी? खुले मैदान में जमा तो कर सकती हूं, अब गलियों में बकरियां गई तो कहां से ढूंढूंगी? रोने लगी। लेकिन मदीना आ गया और बकरियां शहर में दाखिल हो गई, सब इधर एक उधर एक गलियों में। अब उम्मे माबद का रोना हिचकियां बंध गई, अब रोने लगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि हुजूर का दीदार उसी वक्त होता है जब किसी का दिल रोता है।
جب کسی کا دل رونے لگتا ہے وہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا ہے محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو, محمد کو ہم غریبوں میں ڈھونڈو. عزیزان گرامی, معبد رونے لگی. اتفاق کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا. حضرت ابوبکر نے دیکھا اور پہچان لیا یہ ہماری مہمانی کرنے والی وہی خاتون ہے جو مکہ سے مدینہ آنے کے وقت بیچ راستے میں تھی. دیکھا, آپ نے پہچان لیا. پوچھا ام معبد یہاں کیسے؟ وہ بھی چونک گئی. ارے تو وہی مبارک کے ساتھ آنے والا ساتھی تھا, تو یہاں کیسے؟ کہا میں تو یہی رہتا ہوں. ام معبد نے کہا وہ مبارک کہاں ہے؟ وہ مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کون مبارک؟ کون سے مبارک کی بات کر رہی؟ کہا وہی مبارک جو تیرے ساتھ آیا تھا, ایک رات میرے گھر قیام کیا, ایک رات میرے گھر قیام کیا تھا. صدیق اکبر مسکرائے, کہا اچھا تم نے ان کا نام مبارک رکھا, اللہ نے تو ان کا نام محمد رکھا ہے, وہ محمد ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ام معبد کو لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے ہی وہ اپنے آنکھوں سے دیکھنے لگی پھوٹ پھوٹ کر کے رونا شروع کیا. کہا اے اللہ اب میری ساری بکریاں ختم ہو جائیں, اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد مجھے مل گیا, اس چہرے پاک کو دیکھنا میرا مقصد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے حساب اس خاتون کو عطا کیا. جانتے ہو وہی بوڑھی بکری, وہی ہڈیاں نکالی ہوئی بکری جو دودھ دینے کے لائق نہیں تھی, موت کا انتظار کر رہی تھی, پورے زمانے مصطفیٰ میں پورے محلے کو دودھ دیتی تھی, زمانے ابوبکر صدیق میں دودھ دیتی رہی, زمانے عمر فاروق میں دودھ دیتی رہی, زمانے عثمان ابن عفان میں جا کر کے اس بکری کا انتقال ہوا. عزیزان گرامی, یہ تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کیفیت کہ جو ایک بار دیکھ لے وہ زندگی پھر اسی حسن کی یاد میں گزارتے, اسی حسن کی یاد میں گزارتے. ارے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حسن دیکھا تھا, لیکن دیکھا اس کے بعد لے جا کر کنویں میں ڈال دیا. زلیخا نے دیکھا لیکن اپنی شادی کرنے کا خیال کیا, جیل میں پہنچا دیا. بادشاہ نے دیکھا, وزیر بنا لیا, لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس نے حسن دیکھا وہ حضور کو خریدنا نہیں چاہا, بلکہ جو دیکھا وہ اپنے آپ کو بیچ دیا. یہ صحابہ نے کیا ہے. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ بولی لگا رہے تھے, یہ یوسف کو ہمیں خریدنا ہے, یہ حسین ہے, یہ جمیل ہے, بہت خوبصورت ہے. کوئی 100 اشرفیوں کی بولی لگا رہا ہے, کوئی 1000 کی بولی لگا رہا ہے, کوئی 10,000 کی بولی لگا رہا ہے. یوسف کو مجھے خریدنا ہے. خریدنے والوں کی دوڑ ہے مصر میں, لیکن یہاں مدینے کا بازار ہے, یہاں صدیق اکبر بھی مالدار ہے, عثمان ابن عفان بھی مالدار ہے, عبد الرحمن بن عوف بھی مالدار ہے. ایسا مالدار کہ اس زمانے کے کروڑ پتی نہیں, ارب پتی بھی ان کے مال تک نہیں پہنچتے, لیکن یہ مصطفیٰ کو خریدنے نہیں آئے بلکہ اپنے آپ کو اپنے مال سمیت مصطفیٰ کے بازار میں بیچنے کے لیے آئے ہیں. صدیق بھی کہتے ہیں آقا میرے ہر عزم پر, میرے ہر مال پر آپ کا اختیار ہے. عثمان بھی کہتے ہیں میرے ہر نفس پر آپ کا اختیار ہے. یہ صحابہ ہی کا تو نعرہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہاں اپنے آپ کو بیچا جا رہا ہے, ارے وہاں نبی کو ہی خریدنے کی بات کی جا رہی ہے. ایک حسن خریدا جا رہا ہے اور ایک حسن پر اپنی جان فدا کی جا رہی ہے. اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کا ہم کو سہارا لینا پڑتا ہے. امام اہل سنت, امام عشق و محبت اس کی ترجمانی کرتے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اس کو سمجھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کے اشعار تھوڑی گاڑی اردو میں ہوتے ہیں, لیکن جب سمجھ جاؤ تو ایمان میں اضافہ بھی کرتے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ اب یہاں پر میں بتاتا ہوں یوسف علیہ السلام کا حسن ہے, یوسف علیہ السلام کا حسن ہے. نمبر 1 حسن یوسف, اس پر کیا ہوا؟ کٹ گئی. عورتوں نے جان بوجھ کر کے کاٹا, کیا جان بوجھ کر کاٹا؟ واقعہ میں نے سنایا. زلیخا نے بلایا, اچانک کہا کہ لیمو کاٹو, عورتوں کے ہاتھ سے لیمو گر گیا اور کٹا کیا؟ اب اس کو مجھے بتائیں, عورتوں نے کاٹا یا خود کٹی؟ کٹ گئی. ارے میاں جان بوجھ کر کے کاٹنا الگ بات ہوتی ہے, اس کے لیے ہمت کی بات ہے, جگرے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں انجانے میں کٹ جائے الگ معاملہ ہے. حسن یوسف کو دیکھتی رہی اور کٹ گئی ان کی انگلیاں. لیکن کس کی انگلیاں کٹی؟ عورتوں کی. کہاں کی عورتیں؟ مصر کی عورتیں. عورتوں کی بھی کیا کٹی؟ انگلیاں. 5 چیزیں اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے میں بیان کی.
पहला वाला जो मिसरा है, कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना। 5 चीजों को तवज्जो दो, किस पर कटी? हुस्न यूसुफ पे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर औरतों ने, मर्दों ने नहीं, औरतों ने। कहां की औरतें? मिस्र की औरतें। क्या काटी? उंगलियां काटी, यानी खुद काटी नहीं, कट गई। अब इसके बदले में जब मेरे आका की बारगाह आती है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अब यहां पर मिस्र की औरतें नहीं, मर्दान अरब, जो अरब पूरी दुनिया में मरकजियत रखता है, वहां के अरब जंगजू और बहादुर माने जाते हैं। यहां के अरब, या रसूल अल्लाह, अब मर्दान अरब, जनाने मिस्र नहीं, मिस्र की औरतें नहीं, या रसूल अल्लाह, यहां अरब के मर्द और वहां हुस्न पर काटती हैं, हुस्न पर काटती हैं। आका यहां तो सिर्फ नाम पर काटती हैं, यहां सिर्फ नाम पर काटते हैं, औरतें नहीं, मर्द। और फिर क्या आला हज़रत फरमाते हैं, वहां उंगलियां काटी, आका यहां तो गर्दन काट लेते हैं और वहां कट जाती हैं अनजाने में। आका यहां तो जान करके, देख करके अपने आप को पेश कर देते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। या रसूल अल्लाह, तेरे हुस्न का हाल यह है कि यहां मर्द अरब के अपना सर कटाने पर भी फख्र महसूस करते हैं। हक तो यह है कि फिर वो कहते हैं, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। ये सहाबा वही है जो सूली पर चढ़ाए जाते थे, उनकी उंगलियां काटी जा रही, होंठ काटे जा रहे हैं, आंखों में सलाइयां फेरी जा रही, कान काटे जा रहे हैं और हाथों पैरों का मुसला किया जा रहा है। तब भी वो सहाबा क्या कहते हैं? रसूल पाक सामने नहीं है, हुस्न को दिखाया नहीं जा रहा है कि देखें तो उंगलियां कट जाएं पता ना चले, होंठ कट जाए पता ना चले, आंखों में सलाइयां फिर जाए पता ना चले। नहीं, मेरे आका मदीने में हैं, सहाबी रसूल बांधे गए मक्का में, सिर्फ नामे मुस्तफा पर सूली पर चढ़ गए, होंठ कट गए, आंखों में सलाइयां फिर गई, उंगलियां कट गई, नाखून पकड़ से खींचे गए। फिर भी ये कहते हैं, मक्का वालों ने कहा, ऐ खुबैब, ऐ खब्बाब, क्या अच्छा होता तुम्हारी जगह तुम्हारा रसूल होता। जलाल आया, कहा उसी वक्त, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। ये सहाबा का नारा था। कहते हैं, तुम कहते हो मेरी जगह नबी होते तो अच्छा होता। सुन ए नादान, मैं रसूल पाक, मैं अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं गवारा करूंगा, लेकिन मेरे मुस्तफा के तलवे नाज पर कांटा भी छुपे मैं गवारा नहीं करता। ये हुस्न मुस्तफा की बात है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुस्न वो है मेरे अजीजों। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। इस हुस्न का हाल ही अलग है, उस हुस्न की बात ही अलग है। मेरे आका का हुस्न वो था कि सहाबा फरमाते हैं कि जैसे गुलशन में गुलाब है, जैसे गुलशन में गुलाब है, मगर आला हज़रत फरमाते हैं, दुनिया सारी देखती है बागीचे में गुलाब खिला है ना, बागीचे में गुलाब खिला है। एक गुलशन, गुलशन किसको कहते हैं? बागीचे को। बागीचे में मोगरा भी है, चंपा भी है और गुलाब भी है, चमेली भी है, लेकिन जब गुलशन में गुलाब खिलता है सबसे हसीन लगता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह अजीब फिक्र रखते हैं, इश्क़ रसूल में डूब कर कहते हैं, दुनिया ने देखा है गुलशन में गुलाब खिलता है, लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी जात तो वो है कि एक गुलाब है, सारा गुलशन इसी में खिला हुआ है। यहां गुलाब गुलशन में देखे हैं हम, गुलाब में गुलशन देखा जा रहा है, इसलिए कि आंखें एक फूल की तर्जुमानी कर रही हैं, बीनी मुबारका एक फूल की तर्जुमानी कर रही हैं, आपके लबाए नाज एक फूल की तर्जुमानी कर रहे हैं, चेहरे अकदस में अलग अलग एक रंगत है। और इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि यहां तो एक गुलाब में सारा गुलशन समाया हुआ है, हुस्न यूसुफ है। अजीजान गिरामी, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात थी। जहां आप दूसरे नबियों को जो कमालात दिए गए, उन कमालात का अगर मैं जिक्र करूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, वअल्लिमना मंतिक़त तैर, हमने सुलेमान को परिंदों की बोलियां सिखाई। परिंदा जिंदा होता है ना, उड़ता भी है, देखते हैं, ची ची भी करता है, काए काए भी करता है, जानते हैं परिंदे। और परिंदे क्या कह रहे हैं ये हो सकता है आपको नहीं मालूम, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें भी बताती हैं, कुरान में भी है, सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां जानते थे, वो समझते थे। तो कोई अगर ये सवाल करे
کہ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जानते थे या नहीं? अरे नादान, ये सवाल ही नहीं करना चाहिए, वो सारी मखलूक के रसूल हैं। अगर अपने तमाम मखलूकात की जुबान ना जाने तो वो रसूल कैसे है? हर एक की बोली जानते थे। हाँ, अगर वाकयात की रोशनी में चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें बताऊं। हमें तो वाकया मिला, सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की बात सुन रहे थे, हुदहुद की बात सुन रहे थे, कुरान में है, परिंदों की बोलियां सुन रहे थे। लेकिन मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने के बाहर जब एक जंगल के किनारे जाता था, हमेशा मुझे दूर से किसी के सलातो सलाम पढ़ने की आवाज आती थी। जब भी गुजरते थे वहां से कोई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह कहता था। मैं घबराता था, इस जंगल में, इस बयाबान में मेरे नबी को कौन सलाम करता है? जिन्नात हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं। एक दिन पूछ लिया, आका इस भरे जंगल में आपको कौन सलाम करता है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, कहा ए अली, ये पहाड़ देख रहे हो? कहा हाँ। इस पर एक पत्थर है? कहा हाँ। उस पर कोने पर एक जो पत्थर है, वो पत्थर रोजाना मुझ पर सलाम भेजा करता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका सलाम। अब मैं यहां बात बताऊं, यहां तो सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां जानते थे, कुरान, और यहां मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम पत्थरों की बोलियां समझ रहे हैं। जिस रसूल को वो पत्थर सलाम भेज रहा है, सुना किसने पहले? उस पत्थर की बोली समझी किसने पहले? वो बाबुल इल्म हैदर करार अलिया मुर्तदा, वो नबी नहीं, उम्मती जब पत्थर की बोली समझता है तो रसूल किसकी बोली ना समझते हो? किस किस की बोली ना समझते हो? परिंदों की बोलियों की बात आई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पत्थर की बोली। एक बात ये भी समझ लें आप, पत्थर तो कभी हमने उड़ते हुए भी नहीं देखा, आवाज करते हुए भी नहीं देखा, लेकिन नबी सलाम करते हुए सुन रहे हैं। मस्जिद नबवी में मेरे आका मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। साहबा फरमाते हमने देखा पूरी मस्जिद में बच्चे के रोने की जैसी आवाज आने लगी। कहीं से कोई बच्चा रो रहा हो, हल्की 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 आवाज। साहबा इधर उधर देखने लगे, कहीं कोई बच्चा दिखा नहीं। थोड़ी देर के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर आए, मस्जिद के बाहर दरवाजे के तक पहुंचे। वहां एक लकड़ी पड़ी हुई थी। ये वही लकड़ी है, ये वही आसा है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में लेकर खुतबा देते थे। जब मिंबर बन गया तो उस खुद लकड़ी को आपने छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस लकड़ी को उठाते, अपने सीने से लगाया, अपने कानों के पास लगाया और फिर उसको पकड़ करके खुतबे के लिए तशरीफ लाए। सहाबा ने पूछा, बीच खुतबे में आप उतरे, लकड़ी को उठाया, ये क्या मामला? हुजूर फरमाते हैं, तुमने जो रोने की आवाज सुनी वो इसी लकड़ी की रोने की आवाज थी। ये लकड़ी मेरे जुदाई के गम में रो रही थी। जब तक मैं इसको हाथों में रखता था ये खुश थी, सारे लकड़ियों पर फख्र करती थी, और जब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये सिसकने लगी, रोने लगी, बिलकने लगी, और इसका रोना मुझसे देखा ना गया। मैं खुतबा छोड़कर मिंबर से उतर आया, मैंने इसको हाथों में उठाया, ये मुझसे कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने मुझे अपने हाथों में रख करके इज्जत से नवाजा था, मैं दूसरों पर फख्र करती, आका मुझे हमेशा अपने साथ रखें। मैंने इसको अपने साथ रखने की बात कही, ये लकड़ी खामोश हो गई। अजीजा ने गिरामी, ये वो रसूल हैं जो बेजान लकड़ी के रोने पर भी मिंबर से खुतबे से छोड़कर नीचे उतर आते हैं। ये खुतबे से लकड़ी की आवाज सुन सकते हैं, फिर वो कैसा उम्मती है जो ये कहता है रसूल उम्मती की आवाज नहीं सुन सकते, तू बहरा है, तू गूंगा है, तेरा अकीदा खराब है। हमारा अकीदा तो ये है, रसूल अगर लकड़ी के रोने को गवारा नहीं कर सकते, मेरा अकीदा ये कहता है उम्मती रोएगा, मेरा नबी फरियाद रसी के लिए पहुंचेगा, दस्तगीरी के लिए आएगा। यहां तुम्हें रहनुमाई हासिल करने के लिए फिर बरेली के ताजदार के पास पहुंचना होगा। वो कहता है आशिक रसूल, हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अजीजा ने गिरामी वक़ा, ये बोलियां समझने की बात थी। एक बार मक्का मुकर्रमा की ही बात है या मदीने तैयबा की, मक्का में गालिबन लोगों में एक बात मशहूर हो गई कि फलां एक जगह जो पत्थर है, मूर्ति है, उसका पुजारी है, पूजा करता है। अचानक ऐसा हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बुरे बुरे कलमात कह रहा। कौन? पत्थर, मूर्ति बोल रही थी, मूर्ति बोल रही थी। जो पत्थर की मूर्ति थी उसकी वो पूजा करते थे, इबादत करते थे। मूर्ति बोलने लगी तो सब खुश हो गए, जितने दुश्मन थे, कि हाँ आज हमारा भगवान सही बोला। अब तक तो हम हुजूर के बारे में खुद ही बोल रहे थे। पत्थर बोलने लगा
یہاں تو ڈپلیکیٹ بنا کر کے بولوایا جاتا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ پیچھے سے بیٹری اور سیل لگا کر کے مورتی کو بلوایا جا رہا ہو. سیل بھی نہیں تھا, بیٹری بھی نہیں تھی, کوئی کنیکشن بھی نہیں تھا. ہاں یہاں ہم سنتے ہیں اس طرح سے کہ کچھ خدا ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں, پانی پیتے ہیں, لیکن انہی لوگوں کو معلوم بھی ہے وہ کہاں جاتا ہے پانی, کہاں جاتا ہے دودھ, جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن مکہ میں جو ہوا وہ حقیقت میں ہوا. پتھر جو بول رہا تھا حقیقت میں بول رہا تھا. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ مشین لگا کر کے بلوایا جا رہا ہو. تو صحابہ پریشان ہوئے, جنہوں نے صحابہ سے آ کر کے کہا دیکھو تمہارے محمد کے بارے میں ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ. حضور کے پاس آئے, صحابہ نے کہا آقا ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ فلاں پجاری کا جو بت ہے اس کا جو خدا ہے وہ بول رہا ہے, وہ بھی آپ کی شان میں برے جملے کہہ رہا ہے. حضور نے فرمایا ڈرتے کس بات کے ہو, چلو میں بھی سن لیتا ہوں کیا کہتا, میں بھی چلتا ہوں. حضور نے پیغام بھیجا, سارے لوگ جمع ہو گئے, بھیڑ جمع ہو گئی. خدا بول رہا ہے, حضور کی شان کے خلاف بول رہا ہے. ان کے لیے تو بڑی دلیل تھی, بڑی دلیل تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا ان سے کہ تمہارا جو خدا بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے؟ سبوں نے کہا بالکل سچ بولتا ہے, 100% سچ بولتا ہے. حضور نے یہ اقرار کروایا سچ بول رہا ہے, کہا بالکل سچ بول رہا ہے. اس وقت کیوں کہہ رہے تھے وہ؟ اس لیے کہ حضور کے خلاف بول رہا تھا. سارے صحابہ کو حضور لیے اور اس بت کے پاس گئے. جب پہنچے تو بڑی بھیڑ تھی, بھیڑ ہٹائی گئی. جب میرے آقا سامنے آئے تو بت چپ ہو گیا, کچھ بھی نہیں بول رہا ہے, کچھ بھی نہیں بول رہا ہے, اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے. حضور نے فرمایا بہت شور تھا, بہت افواہ تھی کہ بولتا ہے, کچھ بھی نہیں بول رہا ہے. کہاں بول رہا ہے؟ کہا صبح سے بول رہا تھا, پتہ نہیں ابھی کیوں خاموش ہو گیا. اب پجاری ہون کرنے لگ گیا, اس کو راضی کرنے کے لیے اب چڑھائی شروع ہو گئی. اے خدا, اے میرے بھگوان, بول کچھ تو بول, عزت کی لاج رکھ لے. جس کے بارے میں بول رہا تھا وہ آ گیا, اب سامنے بول. سامنے نہیں بول رہا تھا, کچھ بھی نہیں بولا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پجاری کو کہا تو ہٹ جا, تو ہٹ جا. یہ بول رہا تھا, میں کہتا ہوں اے پتھر کیا تو بول رہا تھا, پھر سے بول کر سنا. حضور کا حکم ہوا, پتھر کی زبان سے آواز آنے لگی, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسے ہی آپ نے یہ سنا, آپ نے ارشاد فرمایا لوگو تم نے کہا تھا تمہارا خدا 100% سچ بولتا ہے, سچ بولتا ہے, اب اس کی بات پر عمل کر لے جاؤ. لیکن غصے کے مارے اس بت کو انہوں نے توڑ دیا, مار دیا, ٹکڑے کر دیا. اب ہم دوسرا بنائیں گے, یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے. یہ گمراہ ہو گیا. کون گمراہ ہوا؟ خدا گمراہ ہو گیا. یہ نہیں چاہیے, یہ حضور کی بات کر رہا ہے, دوسرا چاہیے. یہ ہے جب کسی کے دل پر مہر لگ جائے وہ حقیقت کو نہیں سمجھتا. عزیزان گرامی اوقات, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلوایا کس کو؟ پرندوں کو, جانوروں کو نہیں, پتھروں کو بھی. سلیمان علیہ السلام کی فضیلت اپنی جگہ پر کہ ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی, مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پتھروں اور لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے, لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے. اب آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کے اعتبار سے دو چیزیں کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یقیناً صبر ایوب کی جب بات آتی ہے اس کا مثل کوئی نہیں. ایوب علیہ السلام نے کمال کا صبر کیا ہے, اور صبر کا جب نام آتا ہے تو ایوب علیہ السلام کا نام ساتھ میں آتا ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو ایسا نہیں کہ شروع سے بیماری میں رکھا, شروع سے ساری نعمتیں نکال لی, نہیں. ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے, بہت اولاد والے تھے, کافی بیویاں آپ کی تھیں, 16 یا 27 بیویاں آپ کی کتاب میں شمار کی گئیں. کئی اولاد آپ کی تھی, مویشی تھے, جانور تھے, جائیدادیں تھی, باغیچے تھے, بہت کچھ تھا آپ کے پاس. لیکن ایک بار اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا حکم دیا, اب آزمایا جائے. پھر ان کے ایک ایک چیزیں غائب کی گئیں, ضائع کی گئیں. ان کے جانور مرے, ان کی اولاد کا انتقال ہوا, ان کی بیویاں فوت ہوئیں, باغیچے ہلاک ہو گئے, جائیدادیں ختم ہو گئی.
हत्ता कि आपके जिस्म पाक में भी बीमारी डाल दी गई, बहुत तेज बुखार आपको रहता, यहां तक कि आपका जिस्म गल चुका था, इतनी शिद्दत का बुखार आपको दिया गया, लेकिन उस वक्त तक आप सब्र करते रहे, सब्र करते रहे। सब्र में आप ही का तो नाम लिया जाता है, लेकिन मेरे अजीजों वो सब्र उनका मौजज़ा था। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक को अगर मैं बताऊं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो जात है जब वो दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, दुनिया में उनके आमद से 6 माह पहले ही उनके वालिद का विसाल हो चुका है, इंतकाल पहले ही है। आप में से सबके बाप होंगे या मां होंगी, वालिदैन का साया कितनी अहमियत रखता है जानते हैं आप। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो यतीमी की हालत में आए हैं, वो यतीम पैदा हुए हैं, अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम हैं। अपने बाप को पैदा होने से 6 माह पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रूह कब्ज फरमाई। लेकिन ये सब्र नहीं है तो और क्या है। बच्चे ने आंख खोली, मक्का का माहौल ऐसा था कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए मां के पास नहीं दूर रखा जाता था। उस रिवाज के एतबार से पहले दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को या दूसरे दिन ही हुजूर को हलीमा सादिया के गोद में दे दिया गया, मां के पास नहीं। हलीमा सादिया के घर जो मक्का मुकर्रमा से भी तकरीबन 150 किलोमीटर का दूर का सफर है। कौन बच्चा है आज दुनिया में जो अपनी मां से को छोड़कर पहले दिन सफर कर रहा हो। पहले दिन मुझे याद है जब मैं 11 साल का था, मुझे दूर पढ़ने के लिए भेजा जा रहा था, पूरा सफर रोता हुआ गया था, मां के आंचल से लिपट करके, बाप के सीने से लग करके, भाइयों को छोड़ता हुआ देख करके। कौन गम के आंसू नहीं रोता। एक बच्चा जो अपने घर से जाता है होशो हवास में, मुझे मालूम है मेरे अजीजों हिजरत क्या चीज होती है, जब छोड़ करके अपने अजीजों को जाते हैं। उस रसूल को जिंदगी पाक को पढ़ो, ये सब्र नहीं है तो और क्या है, जो पैदाइश के पहले दिन अपनी मां से 150 किलोमीटर दूर हलीमा सादिया के साथ चले गए। हलीमा सादिया ने 2 साल अपने घर रखा, दूध पिलाया और उसके बाद वापस ला करके बीबी आमिना के घर दे देती हैं। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत फरमाती रही। लेकिन यहां अब घर में कौन कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान। खुद मेरे आका फरमाते हैं 6 साल की उम्र ही थी कि हजरत आमिना के साथ मदीने गए थे। जब उसका नाम यसरब था, वह हुजूर का ननिहाल था, हजरत आमिना के घर वालों का, खानदान वालों का शहर था। वापसी के वक्त बीबी आमिना बीमार हुई। तन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के साथ सफर में हैं और आपके वालिदे गिरामी की एक कनीज है हजरत अब्दुल्लाह की लौंडी उम्मे ऐमन, साथ सफर में हैं। 3 लोग सफर पर हैं, मदीने से मक्का जा रहे हैं, 450 किलोमीटर का सफर। 6 साल की उम्र का बच्चा कर रहा है अपनी मां के साथ, बीमार मां के साथ, अपने बाप की कनीजा के साथ। बीच में मकाम आता है, मकाम अबवा। आमिना कहती हैं अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, अब मेरी ताकत जवाब दे गई है। वही मां सो गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिरहाने के पास बैठे, कभी पानी से मुंह पर छिड़कियां देते, कभी अपनी मां का सर अपनी गोद पर रखते और पेशानी को देखा गरम तप रही है। थोड़ी देर में इसी 6 साला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा आमिना बीबी की रूह कब से उनसरी से परवास कर गई है, सर वहीं रह गया, आंखें खुली रह गई। कौन है वो बच्चा जो 6 साल की उम्र में अपनी मां की आंखें बंद कर रहा हो? सफर में कोई नहीं, एक कनीज के अलावा खुद ही उठते हैं और जमीन को खोदते हैं। कब्र खुद तैयार की, कब्र खुद तैयार की। एक कनीज के सहारे अपने मां के जिस्म नाज को उठाया, कब्र में दफन किया। है कोई मुझे बताओ 6 साल की उम्र में कोई तजहीज और तकफीन के इंतजाम करता हो, कोई अपनी मां का जनाजा उठाता हो? 6 साल की उम्र में कोई सफर का बोझ उठाता हो? 6 साल की उम्र में वो अहमद मुख्तार ने अपनी मां का लाश मुबारका उठाया और कब्र में दफन किया और तन्हा सफर करके वापस मक्का आए। मक्का में आने के बाद ये सब्र की जिंदगी नहीं है तो और क्या है। मेरा अजीजों, सब्र अय्यूब की दास्तानें हम सुनते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास शुरू से बहुत कुछ था, जायदादें थी, औलाद थी, बेशुमार उनके पास माल था, मगर मुस्तफा करीम यतीमी की हालत में दुनिया से आए। 6 साल की उम्र पाक में मां भी दुनिया से रुखसत हो गई।
8 साल की उम्र में जो दादा शफीक थे, जो दादा निहायत रफीक थे, आपकी सरपरस्ती करते थे, वो तरबियत करते थे अब्दुल मुत्तलिब, वो भी इस दारे फानी से कूच कर गए। अब्दुल मुत्तलिब को भी दफन किया, सिर्फ चचा रह गए अबू तालिब, जिनकी परवरिश में रहे और तिजारत करने के लिए पहली मर्तबा 12 साल की उम्र में ये रसूल पाक निकलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र से तिजारत कर रहे हैं। अब आओ शादी करने का मौका आया है। 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा खातून से, जिसकी ऑलरेडी 2 तलाक हो चुकी थी, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह किया। क्या ये सब्र नहीं है? ये सब्र नहीं है तो और क्या है? 40 साल खातून से निकाह किया। लेकिन अगर औरतों का शौक होता तो उसी वक्त 4-5 और कर लेते, लेकिन जब तक बीबी खदीजा निकाह में थी किसी दूसरी औरत से आपने निकाह नहीं किया। आपने 25 साल की उम्र से लेकर आपकी उम्र मुबारक जब 50 साल की हुई तब तक बीबी खदीजा के साथ रहे। अब सुने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो दुनिया के अजीम बाप हैं जिनको अल्लाह ने 4 बेटियां और 3 बेटे दिए। सब्र की बात आती है, बाप हिल जाता है, बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर जाता है। एक बच्चा बीमार हो तो हमने बाप को तड़पते हुए देखा है, डॉक्टरों के लिबास से उलझते हुए देखा है, और उसको दवाखानों और हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हुए देखा है। खुद की सेहत को तो गवा लेगा, लेकिन बाप अपनी औलाद की सेहत पर कुर्बान जाता है, अपने आप को तबाह कर लेता है। वो दुनिया के अजीम बाप है मेरे आका, जिनको अल्लाह ने पहला बेटा दिया अब्दुल्लाह की शक्ल में, 3 दिन रहा, हाथ में फौत हो गया। दूसरा बेटा दिया कासिम की शक्ल में, चंद माह रहा, उसके बाद हाथों में फौत हो गया। तीसरा बेटा दिया इब्राहिम की शक्ल में, 6 महीने रहा, खिलाते रहे, उस बच्चे के साथ खेलते रहे, उसके साथ अपनी गोद को गर्म करते रहे। लेकिन 6 महीने के बाद उस बच्चे ने भी अपनी आखिरी सांसें ली। 3 बेटों को ये रसूल पाक ने अपने हाथों से दफन किया है वह बाप के अंदर सब्र जो अपने हाथों से अपने बेटों की तदफीन कर रहा है। बची थी बेटियां, 4 बेटियां अल्लाह ने दी थी, बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी रुखैया, सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सब्र के पैकर को देखो, मैं तुम्हें सब्र पूरी जिंदगी में बताऊंगा। ये वो अजीम बाप है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नौनिहाल नन्हे बच्चों को अपने हाथों से दफन किया, कभी वावेला नहीं किया, कभी मातम नहीं किया, शुक्र बजा लाते रहे अपने मौला का। अल्लाह के हबीब सब्र के पहाड़ बनकर रहे। लेकिन जब आप मदीना तैयबा हिजरत करके आए, मुझे बताओ क्या मक्का वालों ने परेशान नहीं किया? आपके गले में रुमाल डाल करके लोग घुमाते रहे, जिससे मेरे आका का गला सूज जाता था। कभी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारका पर उन्होंने कचरे डालने की कोशिशें की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 साल तक उन्होंने सोशल बाइकाट रखा। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्ते खाए मक्का में, अपने घर के पास पहाड़ की चोटी में रहे, चमड़े गला करके खाए जाते थे। ये सब्र नहीं है तो और क्या है? सब्र अय्यूब को तुमने पढ़ा, सब्र मुस्तफा को भी देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने उनकी औलाद दफन हो गई, लेकिन जब बच्चियां जवान होती हैं तो मेरे अजीज हो, बाप के बुढ़ापे का सहारा भी होती हैं, फसलें बहार होती हैं। कौन बाप अपनी बच्चियों की शादी देख करके मुस्कुराता नहीं, खुशियों में रो भी देता है। बेटियां उसके लिए एक निहायत ही कीमती तोहफा होती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबजादी सैयदा ज़ैनब जब हिजरत करके मदीने में आई, ऊंट के ऊपर से इनको घिराया गया था, जिसकी वजह से वो हमल से थी, हमल गिर गया था। वापस मदीने में आई, बीमार रहने लगी। 1 साल नहीं गुजरा था, हुजूर पाक के सामने वफात पा गई। खुद जनाजा पढ़ाया, अपनी बेटी को दफन किया। जंगे बद्र में गए हैं, अपनी बेटी रुकैया को हजरत उस्मान के निकाह में दिया था। हजरत उस्मान से कहा, रुकैया बीमार है, मेरी बेटी की तीमारदारी में लगे रहो, मैं बदर में हूं। जंगे बदर में रहे, खबर मिली आका आपकी दूसरी साहबजादी रुकैया का भी इंतकाल हो गया। मेरे आका सब्र करके मैदान बदर में रहे, दफन में भी शरीक नहीं हो सके। वापस मदीने में आए, तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसूम, अपने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के निकाह में दिया। चंद महीने के बाद उम्मे कुलसूम बीमार हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में ये तीसरी साहबजादी भी फौत हो गई। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताओ, जिसको अल्लाह ने 7 औलाद दिए, उसमें एक एक बाद दीगरे उसी बाप ने अपने बच्चों को दफन किया है, अपने बच्चों का जनाजा पड़ा है। 3 बेटे और 3 बेटियों को दफन किया, लेकिन जुबान से कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं किया, उफ तक नहीं किया।
सब्र अय्यूब का मकाम अपनी जगह पर, सब्र मुस्तफा का मकाम और है, मेरे आका का सब्र का मकाम और है। आखिर में सिर्फ फातिमतुज़ ज़हरा बाकी रही जब आपकी वफात का वक्त था। मेरे अजीजों, यही फातिमा ज़हरा से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त ये कहा था, कानों में कुछ कह करके वो रोने लगी, फिर बुलाया, फिर कानों में कुछ कहा तो हंसने लगी। माँ आयशा सिद्दीका ने पूछा था, फातिमा तुम्हारे बाबा ने कान में क्या कहा था? फातिमा ने कहा, पहली बार जब उन्होंने कहा फातिमा मैं जा रहा हूं अल्लाह की बारगाह में, मैं रो पड़ी। फिर बाबा ने मुझे बुलाकर कहा, फातिमा मेरे खानदान वालों में से मेरी वफात के बाद सबसे पहले तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी। मैं हंस पड़ी कि मेरी मौत जल्दी होने वाली है। हुजूर पाक की वफात रबीउल अव्वल शरीफ में हुई और हजरत फातिमा ज़हरा की वफात रमजान मुबारका में सिर्फ 6 महीने के बाद हजरत फातिमा भी विसाल कर गई। ये मुस्तफा का घराना है। उसी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सब्र पाक के जलवे देखो। क्या नबी कौनैन अपनी कब्र अनवर से अपने शहजादों की शहादत करबला में नहीं मुलाहिजा कर रहे होंगे, जहां उनके शहजादों को तड़पाया गया, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया और उनके टुकड़े किए गए, जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए गए। हसन मुज्तबा को जहर दिया गया, हुसैन आजम की गर्दन को जिसमें नास से अलग किया गया। क्या ये मेरे आका ने कब्र पाक से मुलाहिजा नहीं किया होगा? अजीजान गिरामी, अगर मैं सब्र मुस्तफा को गिनाऊं बहुत तवील दास्तान होगी, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा, अफजलियत मुस्तफा हर शक्ल में तुम्हें नजर आएगी। अगर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को आहो बुका दिया था, वो रोते थे, और वो किस लिए रोते थे? आदम अलैहिस्सलाम अपनी उस बात पर रोते थे जो आपने गंदुम खाया था जन्नत में, दरख्त का फल खाया था, इस बात पर 300 साल रोते रहे। लेकिन मुस्तफा भी रोते रहे, जिंदगी पर रोते रहे, लेकिन किसके गम में रोते रहे? उम्मती 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 कहते कहते रोते रहे। ये नाज अलग है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे अजीजों, रोने में आप बेमिसाल हैं, जानवरों की बोलियां सुनने में बेमिसाल हैं, हुस्न यूसुफ में बेमिसाल हैं, सबात और इस्तिकामत में बेमिसाल हैं। इसीलिए शायर ने जो कहा उसी बात पर मैं कहता हूं अपनी गुफ्तगू को। हाँ, एक बात रह गई है, वह अता करने में भी बेनियाज हैं, और रहम करने में बेमिसाल हैं, रहम करने में भी बेमिसाल हैं। एक ही मिसाल मैं बता दूं। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा था, तेरे पास बहुत खजाने, ज़कात दे दे। उसने कहा कुछ कम कराओ, 25% ज़कात देनी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने रियायत कराई अल्लाह से कि इसको कुछ कम कर दे मौला। अल्लाह ने कम इतना कर दिया कि 1000 में 1 रुपये दे। कितने? 1000 में 1। उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया तो कारून के बहुत सारे खजाने ज़कात में जा रहे हैं। उस मालदार ने, जिसकी चर्बी चढ़ी हुई थी माल की, नहीं देने का इरादा किया। मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया बुरे काम का, मूसा अलैहिस्सलाम को जला लाया। आपने कहा, ऐ जमीन इसे निगल जा। जमीन फट गई, कारून अंदर जाने लगा, कारून अंदर जाने लगा, और बार बार दुआई देने लगा, बचा लो बचा लो बचा लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी एक भी नहीं सुनी। तूने मुझ पर इल्जाम लगाया। फिर आखिर में उसने कहा, क्या मेरे खजाने पर कब्जा करना चाहते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से कहा, है जमीन इसके खजाने भी निकल जा। सारे खजाने भी जमीन बोझ हो गए, कारून भी जमीन में तहस नहस खत्म हो गया। 1 टाइम 1 शॉट। ये मूसा अलैहिस्सलाम। इससे पहले भी एक फिरौनी को एक घोंसा मारा था आपने, वो मर ही गया था। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना जा रहे हैं। लालच में कई लोग पीछे पड़ गए थे। एक शख्स सुराखा, ये भी पीछे आ गया। दूसरे तो कोई पा नहीं सके, सुराका पा लिया। हजरत अबू बकर ने कहा, आका सुराका देख लिया है हमको, वो तीर कमान लेकर के आ रहा है हमें गिरफ्तार करने। क्योंकि मक्का वालों ने कहा था जो मोहम्मद और उसके साथी को ले आएगा 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। हुजूर ने कहा, अच्छा इसी लालच में आ रहा है। हुजूर ने भी फरमाया, है जमीन सुराका को पकड़ ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को कहा था, मेरे आका ने सुराका को कहा। जमीन खुल गई, सुराका घुटने तक चला गया। लेकिन यह मामला अलग है। सुराका ने कहा, ऐ मोहम्मद तुम करीम इब्ने करीम हो, तुम्हारा माफ करने में कोई मिसल नहीं है, मुझे माफ कर दो, मैं अपने इरादे से बाज आता हूं। हुजूर पाक ने कहा, जमीन सुराका को छोड़ दे। ये शान मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है। सुराका को छोड़ दे। जमीन खुल गई, सुराका बाहर आया, लेकिन इरादा फिर बदला। थोड़ी देर के बाद वो फिर पीछे पड़ गया। हुजूर ने कहा, जमीन सुराका को पकड़ ले। अब की बात जमीन फंस, शक हुई
सुराका कमर तक अंदर चला गया, फिर रोने लगा, ऐ मोहम्मद तुम करीम इब्ने करीम हो, माफ करने में तुम्हारा कोई मिसल नहीं। हुजूर ने कहा ऐ जमीन सुराका को छोड़ दे। जमीन खुल गई, फिर सुराका निकल गया। जा रहा था, सोचा एक बार और ट्राई कर लूं। तीसरी बार फिर पीछे पड़ गया, फिर करीब आया। हुजूर ने फरमाया ऐ जमीन सुराका को पकड़ ले। यहां पकड़ाया भी जा रहा है, माफ भी कराया जा रहा है, पकड़ाया भी जा रहा है, माफ भी कराया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में होता वन टाइम वन शॉट, एक ही बार में एक ही शॉट पर खत्म। यहां छोड़ने की तीसरी मर्तबा जब वो धंस गया गर्दन तक, हुजूर ने फरमाया ऐ सुराका तू 100 ऊंटों की लालच में मेरे पीछे पड़ गया, मेरी निगाहें देख रही हैं कैसर और किसरा के कंगन तेरे हाथ में आने वाले। कैसर और किसरा उस जमाने के अमेरिका यूरोप की तरह सुपर पावर थे, उनके बादशाहों के पास सोने के कंगन थे, वो किसी आम आदमी के ख्वाबो ख्याल में नहीं आते। मेरे आका ने डायरेक्ट पकड़ने के लिए जो आ रहा है उसी को कहा तेरे हाथ में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूं। सुराका को यकीन नहीं हुआ, कहा ऐसा कह रहे हो? उसी वक्त ईमान ले आए, मैं ईमान लाता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जमीन को कहा छोड़ दे। वहां एक बार में पकड़ा गया, एक बार में कारून दफन भी हो गया। यहां एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो भी हमला करने के लिए आ रहा है। हुजूर बार बार माफ कर रहे हैं, माफ करने में आपका कोई मिसाल नहीं। यहां तक कि हुजूर की वफात के बाद कैसर और किसरा पता नहीं हुए, सिद्दीक अकबर के जमाने में कैसर और किसरा पता नहीं हुए, उमर फारूक के जमाने में चल करके सुराका बहुत बीमार हो गए। अब ये सुराका साहबी रसूल हैं, पकड़ने के लिए गए थे लेकिन साहबी रसूल हुए। यही तो बाजार मुस्तफा की बात है, जो जान लेने जाता है वो जान दे के आता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबी हैं, अदब से हम कहते हैं। सुराका बहुत बीमार हो गए, लोगों ने कहा चलो आखिरी वक्त इयादत करने के लिए सब आए। आखिरी वक्त लोग देखने के लिए आते हैं, लोग आने लगे। सुराका ने कहा क्यों आ रहे हो? कहा आखिरी वक्त है, तीमारदारी इयादत के लिए आ रहे हैं हम। कहा सबको भगाया, जाओ मैं मरने वाला नहीं हूं, जाओ मैं नहीं मरूंगा। कहा इतने कॉन्फिडेंस के साथ, कहा हाँ इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया सुराका तेरे हाथ में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूं, अभी मेरे हाथ में आए नहीं तो मैं मरूंगा भी नहीं। ये यकीन था साहबी रसूल का। और उसके बाद हजरत उमर फारूक के जमाने में ईरान भी टूट गया, रोम भी टूट गया। कैसर और किसरा का माल साहबा ने माले गनीमत में मदीने पहुंचाया। उस माले गनीमत में कैसर और किसरा के कंगन भी आए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने फरमाया मैंने सुना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कंगन सुराका के हाथ में होने चाहिए। ले जाकर के उनको पहनाया गया और उसके बाद वो खुशी से झूमने लगे। चंद ही दिनों के बाद आपकी वफात भी हुई। अजीजान गिरामी, यहां बात ये अर्ज करना चाहता हूं, इस रसूल का मामला ये है, अता करने में बेमिसाल, रहम करने में बेमिसाल, माफ करने में बेमिसाल। इसी को इमाम मेरा कहता है बरेली का, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुजूर की बात तो यह है, चोर हाकिम से डरे या बात अलग है। चोर किससे डरता है? पुलिस से डरता है ना। पकड़ने वाला आया तो चोर डर के भागता है, लेकिन आका आपकी शान ही अलग है। आप हाकिम हैं और चोर आप ही के पास छुपने के लिए भी आता है, यही छुपने के लिए आता है। इसीलिए इमाम ज़मन कहते हैं ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही। क़यामत के दिन कुछ मुजरिमों को फरिश्ते ढूंढ रहे होंगे, फला मुजरिम कहां है, फला वो काम किया था, ये कहां है, वो कहां है। जुर्मों का ऐलान हो चुका होगा, फरिश्ते ढूंढ रहे होंगे, लेकिन कुछ मुजरिम मिल नहीं रहे होंगे, कुछ मुजरिम मिल नहीं रहे होंगे। इसको इमाम ज़मन ने अपने शेर में यूं कहा है, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हुजूर कुछ मुजरिमों पर अपना दामन रखे होंगे। आका रहम करने में बेमिसाल हैं। मेरे अजीजों, अभी 12 दिन हैं, आप रोजाना मेरे मुस्तफा की बात सुनेंगे, अपने ईमान को ताजा करेंगे। आज मैं समझता हूं कि आज की ये महफिल यहां तक मैं इस बात के साथ खत्म करता हूं, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक हो, बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर या रसूल अल्लाह, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा